What's up, Kiran? I'm good. What about you, Tashneet? Good. तेरे मुझे तशनीत कितनी देर बाद सुना है ब्रो ये चीजें आजकल आ गई है नाम सुनने को मिलता ही नहीं है Seriously, what's up, passion then? Just kidding. Okay, welcome to Chat with Tashneet's another episode. Okay, एक question बताओ. How are you feeling right now? I'm great. I'm absolutely great. I'm getting a chance to speak. How are you feeling? हाँ जी? Show पे आके how are you feeling? Yeah, तेरा show है. Obviously, I'll enjoy. Whatever. Bye. Thank you. Yeah. Before you start, let me introduce yourself to my audience. Okay, so as I stated, my guest for today is Kiran. She is a very good friend of mine. And we guys know each other from, I guess, when we were in 2nd or 3rd grade probably. And it's been pretty long time. हम लोग बस में इकट्ठे जाते थे, I remember. और स्कूल तो हम लोग like you were senior to me, है ना? Like she is 1 year older than me, but still हम लोग में age gap कोई भी barrier नहीं बनता. हम लोग कोई भी random talk पे बात कर सकते, random talk पे बात कर लेते without any hesitation, which is why I love you as a person a lot. Okay. Love you too. Thank you. Okay. Do you want to add something to your intro? Feel free to do that. यार तेरे academic records रह गए. रुक जा. हाँ, किरण के academic records के बारे में क्या ही कहना. She was a wonderful student, and she was a wonderful speaker as well. और she is a melodious. She has very melodious voice as well. That's all. बाकी जितनी तारीफ होगी वो एपिसोड में हो जाएगी. बस अब बहुत हो गया. सही है. और बता, how is life going? It's going good. कुछ और भी बोल. Like अब क्या बताऊँ, you know me well. कि starting में it was like you know about my underconfident stage as well, and right now you're getting to see the same Kiran as you left in school. So great. It's going great. That's why I said it's going great. Nice. And just please elaborate that underconfident thing, because I don't think you मतलब हाँ ठीक है underconfident मेरे को लगा अभी last के थोड़ी देर में, but you never appeared to be like that. कि कभी दिखता नहीं रहा कि तू इतनी underconfident है. Nobody can consider me as an underconfident person. That is why sometimes in extempore, you know me well, like we need to participate it. And when I participated to Upasana ma'am, I was like, ma'am, I was so underconfident right now. I feel so underconfident in front of mic and all. And she was like, your legs were not shivering at all. What are you saying? So nobody can consider me as an underconfident person. It's just me who knows me well. It's like मुझे पता है. Behave like. हाँ. And you know what? कि ये जो like ये एक स्किल ही होती है कि शो नहीं करना लोगों को what I'm actually feeling, which is great. Yeah, thank you. And also एक बात बता, like तेरे को लगता है कि जैसे स्कूल में हम लोग कॉन्फिडेंस लाइक तो हम लोग यार खुल ही गए थे, स्कूल में ही खुल गए थे. वो चीज तो खत्म ही है अब कि हम लोगों को हमने हर चीज में पार्टिसिपेट किया, तो that's not even. And the most important thing is you have actually won some competitions. मेरे तो कभी प्राइज भी नहीं आए थे, फिर भी मैं हर में होती थी. I don't know why. Right, bro. This thing also, this needs a lot of courage to do what you're doing right now. Right now? Oh, nice. Yeah, I can relate to the fact. बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं. Which is why मेरे को एक सेंस ऑफ आता है कि हाँ यार कर ले, लोग कहीं बोल रहे हैं, which is good. I'm like, dude, just go on. अच्छा, अब the question which I really want to ask you is, which may help the audience as well. देख, school में you had a very different personality in terms of like you was very studious, है ना? जैसे मैंने पहले भी बोला. फिर तेरे को था कि इतना एक्सपोजर नहीं लिया तूने स्कूल लाइफ में, तो नहीं लिया. अगर मैं कहूँ एज इन फेयरवेल्स वगैरह पे, या फिर हम लोगों का एक ही ग्रुप था जिसपे हम बात कर लेते थे, ठीक है. बाकी लोगों को तो हमारी पर्सनालिटी लगती थी, dude, they are very arrogant, they are very rude, है ना, ऐसा कुछ.
Exactly. So To hear this lot that you were a very arrogant person, I'm like, bro, please, you could have talked to me like that. मतलब why do you think so? But अभी हाँ भी लोग जो हैं वो कहते हैं it's fine, it's absolutely fine. You need to be selective about people. You cannot talk to everybody which match your zone. Those are the people you need to keep in your life. Otherwise, you have to fuck off. It's just that. exactly my point. Have everyone in your life. ठीक है. Exactly. Who wants to stay, stay. If you want to go, go. हाँ, feel free to go. Feel free to stay. I'm absolutely fine without you. I was Nice. born without you. I can live without you. That's it. Oh, nice. This was savage. This was savage. The savage attitude just came by after something happened. It's fine. You know, like after. हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे स्कूल से बाहर निकली तू, ठीक है, तेरे को जैसे बंदों को होता है ना कि हाँ एक जोन बना होता है, उस पे हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. तेरे साथ ऐसा कोई चीज हुआ था कि हाँ जब तू कॉलेज में गई थी, दो वी आर एक्साइटेड है ना, हम लोगों को होता है कि हम लोग कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे टाइप्स है ना, पर तेरा क्या सीन था उस टाइम पे? तेरे को लग रहा था कि सच में मतलब कुछ होगा ऐसा कुछ कि मैं खुद पे डाउट करने लग जाऊंगी, या एज इन वैसे मतलब हुआ तो नहीं तेरे केस में ऐसा कुछ, बट स्टिल लाइक ये चीज हैव यू लाइक तूने कभी सोचा था कि हो भी सकता है ऐसा कि मैं खुद पे डाउट ना करने लग जाऊं या मेरी एबिलिटीज पे मेरे को शक ना होने लग जाए टाइप, या तू बहुत ही है? This is exactly what I went through. Like I started doubting myself. I'm not good enough for what I'm not. I'm not confident enough. I cannot stand in front of people. I cannot make decisions. These are the things that I've gone through these days. और वो थोड़ा genuine भी है. Why? Because यार 2020 में अभी just had our exams है ना, मतलब 1 year. Right? So after that we were totally into online, and you know I wasn't even on Instagram. I didn't use any Snapchat, or I just excluded myself from social media totally. So that was the hardest point in my life, where it was like totally completely online, and I didn't know how to talk to people online. I didn't have social media friends at all. And then WhatsApp पे जब वो ग्रुप चैट होती थी तो I wasn't even participating in that. Why? Because मैं नहीं थी social person, ठीक है, I was an introvert. तो someone from my family said कि मतलब ऐसे तो तुम्हारे friends ही नहीं बनेंगे है ना, you need to talk to people, otherwise क्योंकि पता ही है groupism colleges में बन जाते हैं easily होता ही है, तो अगर you'll feel left out, someone said. So I started talking to people, and it was quite nice in the starting. Unless you मतलब it's like कि किसी को भगवान ना बनाओ, ठीक है. I used to make people totally my god कि मतलब हाँ ठीक है यही है types. I had selective people in my life, but then जब वही selective people आपको feel करवाते हैं that you are not wanted, तो फिर मतलब even in friendship or any kind of relationship you have, even if your family member as well, ठीक है, उसी से होता है ना, तो that is very hard to handle. तो वही जोन में मेरे को लग रहा था कि मतलब I cannot make decisions, like I cannot make good friends, ठीक है, तो ये चीजें काफी आगे थी. And then I was like fuck people, I don't know, like I'm okay, fine, I'm absolutely fine kalle right now. But right now you're fine, but that feeling actually destroyed you, like mentally disturbed kari thi. Exactly, that is too difficult to handle. I want nobody should face that kind of situation in their lives. Never. क्योंकि यार हर एक की लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं. I just want to add some value in someone's life. I don't want to be a reason for someone's anxiety or someone's sadness at all. I just want them to be happy. If they don't want to me, it's fine. But the ones who give me negative energy, I have no time to spend for them. Right. And like underconfident वाली हमने जो बात करी थी, और social media friends वाली. So what is the thing कि तेरे को लगता है कि social media friends और like जो real friends होते हैं जिनको तुम actually देखते हो? सबसे पहली बात तो यार मेरे को ये texting समझ नहीं आती. मतलब like as in texting is of no use. If you actually want to talk to people, talk to that person or something else,
किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, जस्ट कॉल, या फिर वॉइस मैसेज वाली भी कोई चीज होती है। टेक्सटिंग में इमोजीज भेज रहे हैं, भाई इमोजीज का कोई मतलब ही नहीं होता। देख हम वो लोग तो है। हाँ हंस जी। रहे होते हैं, हम लोग हंसी हंसी वाली इमोजीज भेज देते हैं, एक्चुअल में हम लोग कोई फील नहीं कर रहे होते, कुछ भी फील नहीं कर रहे होते, बट स्टिल वी वांट टू टेक्स्ट, that's all. But like it's a part of life, like हमें you cannot always, you are not always free to call, like to call, you're not always free, so just drop a text, ऐसा कुछ। hello नहीं, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। अगर मतलब आपको टेक्सटिंग में भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, जो रियल लाइफ पीपल आपकी हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है दैट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट एज वेल एंड नेगेटिव एज वेल, कि कई बार आपको वो फ्रेंड्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर जो रियल लाइफ में आपके जेन्युइन नहीं होते, ठीक है। यू डोंट हैव फ्रेंड्स, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट फ्रेंड्स। तो दैट्स अ ह्यूज थिंग ऑफ सोशल मीडिया। बट मेरे केस में इट वाज टोटली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज सोशल मीडिया मैंने कभी चलाया ही नहीं भाई, मेरे को कोई शौक ही नहीं था। स्कूल में भी आई वाज लाइक सो स्टूडियस, आई डिडंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन दिस थिंग्स एट ऑल, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट यार नाउ आई एम लाइक इट्स फाइन। अपनी फोटोज डालने में यार किसको अच्छा नहीं लगता है, एंड इट्स मेमोरीज, इट्स कंप्लीटली मेमोरीज। वही तो तो ठीक है। हाँ जी। हम लोग अपनी फोटो रुक जा आवाज फिर से कटी है। हेलो हेलो। हाँ अब बोल। तो यार मैंने कॉलेज में यही सीखा है कि मतलब अगर आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई भी टाइम आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ऊपर से अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं मानते, नोबडी एल्स इज गोइंग टू ट्रीट यू एज अ प्रायोरिटी। आप किसी भी लाइफ में अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको प्रायोरिटी बनाए, अगर आप खुद को ही नहीं मानते अपने लिए। वेरी 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 डीप एंड प्रोफाउंड पॉइंट्स। सबसे पहली बात, टाइम लाइक टाइम कैन नेवर टेक टाइम नेवर टेक्स टाइम टू स्वेच, ये मैंने कोट बनाया था ना, तो आई एम लाइक याद है तेरे को? नाइस। मैंने देखे तो हुए हैं, ठीक है। आई डिडंट हियर योर पॉडकास्ट बट ठीक है। हाँ कोई ना। तो आई जस्ट इट्स अ सिंगल लाइन, इट वाज नाइस। थैंक यू। हाँ तो फिर ये चीज तो बहुत ही पावरफुल है यार, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग अभी भी लाइक हम लोग प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। अभी भी हम बात कर रहे थे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सो कॉल्ड, ठीक है। तो हम लोग वी आर लाइक हम लोग वो नहीं ना कर रहे, मतलब डिस्क्लोज नहीं ना करेंगे चल कोई ना, पर हाँ वी आर लाइक कि चल अभी रुक जा तो दैट इज द थिंग ना। डोंट लाइक हम लोग भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे टाइम को, करना चाहिए। सुन ले यार, पता है क्या है कि मतलब ना हम अगर सोचें, मैंने ये चीज़ भी ट्राई करी थी, आई ट्राई टू शेड्यूल एवरीथिंग, कि मतलब एक टाइम टेबल बना लिया, हाँ जी इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। और उसके बाद आई यूज्ड टू बी वेरी सैड कि मतलब हाँ जी भी मैं ये काम नहीं कर पाई, ठीक है। तो इतना मतलब अपसेट हो गया कि हाँ जी मतलब आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग एज वेल, ठीक है। बहुत सैड हो जाती थी। बट यार इट्स लाइफ। तो मेरे को यही कि मतलब शेड्यूलिंग एवरीथिंग डजंट सर्व द पर्पस। आपको एंजॉय भी करना चाहिए। लाइक if you want to skip those schedules and enjoy something else, you can. It's just that balance बनाना चाहिए लाइफ में। और यही जो बात थी ना तेरी, हाँ जी हाँ यही जो तूने अभी बात बोली है ना कि स्केड्यूलिंग वाला, मैं आई वाज रीडिंग द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। उसमें मेन पॉइंट जो मतलब स्टार्ट में आता होता है कि द मोर यू फोकस ऑन बीइंग पॉजिटिव, द मोर you'll end up being negative। और सिमिलरली मैंने एक बुक में नहीं एग्जैक्टली पढ़ा था, मैंने ये किया था। आई वाज वाचिंग अ मूवी एंड समवन सेड कि द मोर यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू समथिंग, द मोर दैट थिंग स्लिप्स अवे। या राइट। तो मतलब कि जितना आप जिस चीज के पीछे भागोगे ना, जितना चेज करोगे, यू कैन नेवर अट्रैक्ट दैट थिंग एट दैट पॉइंट। पर जब आप चेज करना छोड़ दोगे ना, वो चीज आपके पास खुद आ जाएगी। दैट्स ट्रू, इट हैज हैपेंड विद मी। नहीं पर ये थोड़ी है कि हम लोग बिल्कुल ही उस चीज को छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स लाइक यू हैव टू लाइक, अगर तुम लोग व्हाट आई सेड, यू नीड टू क्रिएट बैलेंस। लाइक आपका पर्पस जो आप चाहते हो, गोल, वो भी अफेक्ट ना हो, बट साइड बाय साइड यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल। यू कैन नॉट
जस्ट डू थिंग्स कि मतलब स्केड्यूल कर लिया, हाँ जी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, यू फॉरगॉट टू एंजॉय. या दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ ना, कि हम लोग जैसे दिस इज द कॉमन थिंग, लोग सोचते हैं कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, और वो हमेशा अर्न करने में लग जाता है, राइट? तो बट ही और शी डोंट नो हाउ टू स्पेंड. मतलब वो लोग सोचते हैं सेव करके रखे जाओ, सेव करके रखे जाओ, सेव करके रखे जाओ. आजकल तो यार तुम्हें पता ही नहीं है व्हेन यू आर गोइंग टू एंड. दैट्स लाइक यू डोंट नो. दैट्स द पॉइंट कि एंजॉय भी करो, स्पेंड फॉर योरसेल्फ, for your Yeah. self growth, right? Nice point. और जो वही second, चीज, सॉरी, हाँ हाँ जी कंटिन्यू. बोलो continue. नहीं, you were saying something. हाँ, I said कि the second point which you stated was like nobody will value yourself until nobody will value you until you are valuing yourself. Like you are the most important person for you. जैसे होता है ना, हम we start to give fucks about many things, है ना? We don't know where to pay attention. So that's the point. कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोगों को किस चीज पे concentrate करना चाहिए और किस चीज को ignore करना चाहिए. So nobody will value you until you value yourself. Do not give a fuck about the obstacles या फिर the people around you if they are providing some negative energies to you, right? एंड वन मोर थिंग कि मतलब जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, आई पर्सनली यूज टू रियली डू दिस थिंग इन माई लाइफ, लाइक कि मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, यू गेट कोट्स एंड ऑल, है ना? तो कई बार ये भी होता है कि कुछ नेगेटिव कोट्स होते हैं कि मतलब उन लोगों को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, दो टेक सो मच टाइम टू रिप्लाई एंड ऑल. ठीक है, मतलब ठीक है, यू आर रिलाइंग अपॉन समथिंग विच इज नॉट एन एग्जिस्टेंट फॉर यू, कि मतलब आप उस पर्सन को जानते नहीं. ठीक है, अगर सपोज आई हैव समवन इन माई लाइफ जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है, इवन इफ माई फैमिली मेम्बर, इवन माई फ्रेंड और वॉट एवर ही और शी इज, ठीक है, तो मतलब आई यूज टू रिलाई अपॉन दोस कोड्स कि हाँ जी अगर इस बंदे के साथ ये हुआ है ना, तो डेफिनेटली वो भी मेरे साथ यही कर रहे हैं, कि मुझे भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए. अगर वो रिप्लाई अगर कर रहे हैं गलत, तो मेरे को भी उस टाइम पे रिप्लाई नहीं करना है. तो दिस वाज लाइक कि मतलब हम सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं ना, कि मतलब हमारे डिसीजंस भी बेस्ड ऑन दैट थिंग ओनली, कि मतलब सोशल मीडिया पे जो देख लिया वही चीज सही है. वो अपनी शेयर कर रहे हैं, जैसे तू अब कर रही है, ठीक है, यू आर मेकिंग अ पॉडकास्ट, ठीक है, यू आर लिसनिंग टू समवन एक्सपीरियंसेस, तो वही चीज तो किसी और के साथ, किसी और की लाइफ में इम्पोज नहीं कर सकती. दैट्स हिज और हर लाइफ, है ना? हम लोग सिर्फ हिट कर सकते हैं, हम लोग उसे ये नहीं बोल सकते कि तू अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर, हम सिर्फ हिट कर सकते हैं. एग्जैक्टली, मतलब वो हिट तो करती थी. आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग ऑन माय लाइफ एज वेल, कि मतलब किसी और के डिसीजंस, किसी और ने कुछ जो बोल दिया वही चीज मैं करूंगी, कि हाँ जी भी अगर उसकी लाइफ में ये चल रहा है तो मेरी लाइफ में भी यही हो रहा होगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस. आई यूज्ड टू वर्क अपॉन द थिंग्स जो किसी और ने मेरे को बोली. So that's the huge mistake I've done in my life, and एंड पे जो हुआ तो you know well. But yeah, that's the point ना, कि हम लोगों ने जैसे for instance you have chosen a wrong metric, या मतलब तूने एक गलत मीडियम चूज करा to judge yourself. हाँ, तो दैट इज द पॉइंट कि हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें खुद को जज कैसे करना है, बिकॉज आजकल वी जज आवरसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट पर्सन हैज टू से, और व्हाट दैट टीचर हैज टू से, व्हाट माय फ्रेंड हैज टू से, और माय फैमिली मेंबर हैज टू से. दैट्स ऑल. हम लोग खुद को जज कैसे करते हैं, और सबसे मेन बात, सोशल मीडिया पे कमेंट कैसे आते हैं, उससे जज करते हैं. exactly. और किसी चीज से जज नहीं करते. किसी ने बोल दिया यू आर लुकिंग गुड, या आई एम लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग लाइक अ किड, like if someone says कि अच्छा this doesn't suit you, तो हम क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कि like really do I need to post this or no. तो मतलब अगर पसंद है तो we'll think about कि हाँ जी अगर उसको पसंद आएगी तो I'll post, otherwise I won't. Yeah. And that's the silliest thing जो कि हम कर सकते हैं. और मैं तो इस चीज से बाहर निकल ही चुकी हूँ. मेरे को तो पता नहीं कब की समझ आ चुकी है. I don't give a fuck about people. कमेंट कर who cares. और वैसे भी मेरा ओपन अकाउंट है नहीं. तो वैसे कुछ लोग हैं कि
I don't follow, उनके लिए भी मैंने comments have been disabled for them. It's okay. Oh, nice. वही लोग पता क्या करते हैं कि मतलब they'll share my post to me, ठीक है, direct message में मुझे वो भेज के कह रहे हैं कि मतलब this is very nice and all whatever. I don't care. क्या 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 कि वो तुझे पर्सनल में भेजेंगे और फिर तेरे को ट्रिम करेंगे, वहाँ पे कमेंट करेंगे DM में. Oh shit. मौत कर दी. Dude. इतने मतलब get some life bro. इतना Yeah, क्या? bro. Oh god, यार, this is so bad. Yeah. सही है. But ठीक है यार, you बोला था ना कि मतलब you don't have time for negative energy, और होना भी नहीं चाहिए. You need to be clear in your thoughts. यार मैं वही तो कह रही हूँ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए यार. You should like कुछ और अगर सोच लो. थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करे ना, that means you are wasting your life on that single thing. राइट. वही ना, देख हम लोग इतना थॉट्स में यार देख, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा उस चीज में अंदर घुसी जाएंगे, फिर और थॉट्स आएंगे, फिर उन थॉट्स में घुस जाएंगे, और फिर ये चलता ही जाएगा, और फिर खुद ही will feel sad, will feel anxious, will feel depressed. So it's better that you. ये भी मैंने चीज कहीं पे पढ़ी थी कि मतलब कि whenever you feel exhausted और it's like कि आप बहुत frustrated feel करते हो, that's the reason or that's the point your mind is telling you that you need to find something about your purpose of your life. कि मतलब आप आए क्यों हो लाइफ में, you need to find out that thing. ऐसे लाइफ गुजारने से कोई फायदा नहीं है. You know, that hit me really hard कि मतलब हम सैड हो रहे हैं, हम अपसेट हो रहे हैं, वी फील एग्जॉस्टेड, वी फील रियली फ्रस्ट्रेटेड विद लाइफ कि मतलब व्हाई एम आई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कई बार ही आते हैं. तो दैट इज द रीजन, दैट इज द थिंग. हमारा हार्ट, हमारा माइंड हमें कॉन्शियस कर रहा है कि भाई तुम्हें कुछ करना चाहिए लाइफ में. Exactly. इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी नीड टू फाइंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ. Yeah, exactly. But this is hard to find यार. This is not everyone's cup of tea. ये लोग यार, ये अभी तक हम भी तो ढूंढ ही रहे हैं, हम भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बट यस, हमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो समझ आ गया कि दीज जो भी आजकल हमारे अराउंड होता है, हमारी जनरेशन सो कॉल्ड में अराउंड होता है, दैट्स जस्ट वेस्ट. ये चीज एग्जैक्टली मेरे हेड में भी क्लियर है, मेरे हेड में भी क्लियर है, तेरे में भी क्लियर है. Which is you need to think about the next step. अब तुम पुरानी जर्नी देख लोगे भाई, तुम्हारी लाइफ एंड होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जर्नी का एंड तो हमारा यही है. लाइफ का एंड इज डेथ. तो यू नीड टू फोकस अपॉन द नेक्स्ट स्टेप. इतने लंबा नहीं सोच सकती मैं. पर्पस तो मुझे नहीं पता, अब तुझे भी नहीं पता, ठीक है. वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड्स. इट्स लाइक वॉकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स आवर गोल. Exactly. You guys are experimenting with new stuffs. वो चीज इम्पोर्टेंट है. या और वही ना, लाइक अगर हम सोचें कि हम लोग इस चीज में भी घुस जाए, हम लोग इस चीज में घुस जाए, दिस इज द एज वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट. आफ्टर दिस you'll definitely have no time to experiment things, to try new things. उसके बाद टाइम ही नहीं लगेगा, बिकॉज उसके बाद you'll हम लोग एक मेंटल बैरियर में हो जाएंगे कि अब हमें कुछ करना है और अब हमें कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी आफ्टर डिग्री. ऑफ कोर्स ये चीज तो आ ही जाएगी. या और कुछ बोल. What else? As in कुछ भी बोल. Tell me something about you as well. It's been long we have talked. It's been long? Oh नहीं, कल तो बात हुई है जब हमने पॉडकास्ट के लिए बोला है. पर हाँ, एज इन अगर लॉन्ग बातें करें वो नहीं हुई ना हमारी यार. लॉन्ग इन द सेंस अबाउट लाइफ. हाँ, नॉट अबाउट पॉडकास्ट. मैं सिर्फ आस्क किया एंड आई वाज लाइक हाँ ऑफ कोर्स मेरे को मौका मिल रहा है टू स्पीक. आई रुक जा. I literally want to thank you because तू पहले गो में ही मान गई. थैंक यू. क्योंकि नहीं मानते यार लोग, बहुत ही मिन्नतें करनी पड़ती है. मिन्नतें फिर मेरे से होती नहीं है, फिर मैं कह देती हूँ नो, यू आर नॉट इन माय लिस्ट, जस्ट गो अवे. एग्जैक्टली. यही एटीट्यूड रहना चाहिए. नहीं, अब मैं तो कंटिन्यू नहीं कर सकती. बस हो गया. एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, ठीक है, कूल. I don't want to ask you like यार इसमें क्या है, मैंने कौन सा तुमसे कोई, तुम्हारी अभी कोई जर्नी तो है नहीं. we are just talking, we are just randomly talking. Maybe we could actually portray a point which can actually hit somebody. Maybe, you don't know.
और वैसे भी सपोज हमें यही चीज हम कल को सुने और हमें लगे हाँ भाई यहाँ पे मैंने गलत बोला था, और एग्जैक्टली राइट नाउ जो अब सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज काफी अच्छी होगी कि हाँ जी भी आई हैव डन सम ग्रोथ इन माय लाइफ, कि तब मैं ये सोचती थी एंड नाउ आई एम चेंज्ड, so that gives you a sense of happiness कि at least you have done something in your life. राइट, एटलीस्ट हमने एक पॉइंट पे जाके कुछ ना कुछ तो करा था, एंड आफ्टर दैट अगर हम ये सुनेंगे भी थोड़ी देर बाद, एटलीस्ट हमें तो खुशी होगी ना कि हाँ चल हमने तो अपने बात पे कायम रहे. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. या अच्छा सुन, पता है आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट पोजीशन इन आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन, जो कि था मतलब डिफरेंट टॉपिक्स से. तो मैंने लिखा था क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, और मेरा फर्स्ट प्राइज आया उस पे. वाओ, पूरे फर्स्ट ईयर का था ना वो कंपटीशन. करो कॉलेज में, यू नो माय कॉलेज. ओह माय गॉड, तूने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है कॉलेज में ऐसे कुछ? कौन से, कॉलेज ही नहीं खुले. तो मतलब ऑनलाइन इवेंट्स ही होते थे, जैसे ये तो ऑनलाइन ही हुआ है मेरा. यार ऑनलाइन इवेंट्स में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गेट पार्टिसिपेट, और वैसे भी इट्स जस्ट दैट नोबडी लिसन्स टू यू, ठीक है, और वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन थिंग्स. या आई डिड पार्टिसिपेट ब्रो, आई फॉरगॉट इन द स्टार्टिंग ओनली, लाइक जब स्टार्ट हुए थे हमारे सेशन की, एंड तब हुआ था कि मतलब यू नीड टू पार्टिसिपेट, बॉलीवुड में भी कर सकते हो, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, तो तब मेरा फर्स्ट आया था. ओ यार तू गाना गा दे यार लास्ट में. ओ प्लीज. नहीं यार, ऑडियंस को मैंने तेरी इंट्रो में यही बोला था ना कि हाँ शी लव्स सिंगिंग. कोई बात नहीं, कभी सुनाएंगे, कभी और सुनाएंगे. मतलब हाँ तू अगली बारी फिर से आएगी. राइट, थैंक यू. और मेरे पास काम क्या है, बोल नहीं आता है तो वही करती हूँ. माय गॉड, कहती है और मेरे पास काम क्या है. और सोच, पहले ही तूने बोला था कि हाँ आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, दिस दैट दीस. यार बिजी शेड्यूल इट डजंट मीन कि मतलब कि हाँ यू कांट मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट मैटर. यू नीड टू मेक टाइम्स फॉर थिंग्स दैट मैटर. ये चीज मैंने बोल दी ना कि लाइफ वेस्ट थोड़ी करनी है. वाह भाई वाह. ये किसको सुनती है तू आजकल ऑन YouTube? सुनती हूँ, एटलीस्ट आई हैव माय इनर वॉइस राइट नाउ. बीच में चली गई थी पता नहीं कहाँ. आई वाज डेफ एंड डम्ब. I am literally happy that you're back with like bang on, dude. Thanks. You're back. Thank God. हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी when we like हम लोग जब डोमिनोज गए थे. That बोली जा रही हूँ. I couldn't process anything you were saying. उस टाइम पे मैं कह रही हूँ कि तब तो you could actually notice that you said me as well. मैंने तेरे को तभी तो बोला. मैं कह रही हूँ अभी मैं बोली जा रही हूँ तो घर पे जाके सोची जो भी मैं बोल रही हूँ. और उसके बाद पता नहीं क्या ही हुआ, मेरे प्रवचन शुरू हो गए और तू उस टाइम पे गुम ही थी. हाँ पर तू सुन रही थी पर तू गुम थी. बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी. तू बोल क्यों रही है कि मतलब व्हाट डू यू वांट टू से. या राइट, ठीक है यार, लाइफ गोज ऑन. थोड़ा जोन एवरी फकिंग पीपल यू नो डाउनफॉल्स हो जाते हैं, ठीक है. वही है ना कि मतलब नीड टू, और ऐसे भी नीड टू बी एंटी फ्रेजाइल. ये भी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, नीड टू बी एंटी फ्रेजाइल विद एवरी ब्लो दैट लाइफ थ्रोज ऑन यू. या मतलब उस चीज पे आपको ग्रो करना चाहिए. यू नीड नॉट टू सिट एंड क्राई. यू डोंट बी द विक्टिम. ओके, ये चीज मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाई है कि सिंपैथी कार्ड मत खेलो. जब भी तुम्हें लगे कि ना ये बहुत मतलब विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए लाइफ के साथ, क्योंकि फिर लाइफ तुमको वही लेसन सिखाने के लिए ना वही चीजें दोबारा रिपीट होती रहती है इन योर लाइफ. अच्छा मतलब ये वर्स्ट पार्ट कि अगर तुम एक बार में नहीं सीख पा रहे. हाँ कंटिन्यू. हेलो. नहीं, योर वॉइस यार ये फिर से चली गई. हेलो. हाँ कूल, यू बैक. हेलो. हाँ बैक. Yeah. Are you there? You were saying something. हाँ मैं वही बोल रही थी कि जो तू पॉइंट बोल रही है कि you're iterating the fact कि if you really want to be happy, accept everything
though it is tough at times, you'll feel like it is hurting you, but like you have to accept the things. और मैंने ये चीज भी पढ़ी है लास्ट परसों पढ़ी थी कि अपनी लाइफ में ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है. एग्जैक्टली. एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और लोगों का फॉल्ट हो सकता है. भी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ब्रो. आई एम द रियल लाइफ एग्जांपल. जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं. I couldn't make the right decision. Even if the people around me were nice, ठीक है, still I made wrong choices for myself. I did not stand for myself. That was the biggest mistake I made. But it's okay. Yeah, you need to accept your flaws. अगर आप ही अपने आप को accept करके अपने आप को forgive नहीं करोगे, then nobody is going to forgive you. क्योंकि वैसे भी लोगों को मौका चाहिए to remember your mistakes, to let you down, to bring your past when it's over. Exactly. तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो या फिर तुम लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो. At least have some confidence in yourself that whatever you are doing, you're doing good and it will go good. और accept करो अपने flaws को. वही ना, हम लोग आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे भी यही होता है. मतलब सोशल मीडिया ही चल रहा है. हाँ, पर हाँ, तो सोशल मीडिया पे भी यही होता है. देख, दो हमें हम लोग जैसे मान ले पिक्चर्स हम लोग एडिट करके डाल लेंगे एज इन कि हाँ लोग देख रहे हैं, दे विल कमेंट अस. और फिर उससे क्या होगा, इन रिटर्न हमें एक सेल्फ वो आती है कि हाँ पीपल आर लाइकिंग मी, दे आर अप्रिशिएटिंग मी. जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ डाउट नहीं, जैसे वी फील फुल, हमें खुशी होती है कि हाँ लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी ये पिक्चर अच्छी है, हमारी ये पिक्चर अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ. एग्जैक्टली. हम डिसाइड अपनी पिक्चर अच्छी है कि नहीं, दैट आल्सो वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक्स एंड कमेंट्स वी गेट ऑन दैट पिक्चर टू बी मेंशन्ड. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. और इससे फिर अगर मान ले ज्यादा लाइक्स आ गए, हम लोग बोलेंगे दिस इज द बेस्ट पिक्चर वी हैव गॉट. या और ये और we ourselves don't like that picture. अगर वहाँ पे ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा लाइक्स आ गए ना, maybe this is the best picture I've posted, हमारा ऐसा रिएक्शन होगा. और फिर हम लोग डायलेमा. एग्जैक्टली. और यार ये सोशल मीडिया के दो साइड है. देख, हम लोग एंटाइटल्ड फील करते हैं अगर हमारी पिक्चर ज्यादा लाइक ज्यादा कमेंट्स आ गए, ठीक है, ईगोइस्टिक ज्यादा हो जाते हैं कि जैसे मान ले जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, ऑफ कोर्स दे विल फ्लॉन्ट दैट थिंग. मेरे तो 1000 फॉलोअर हैं, मेरे तो 500 फॉलोअर हैं, तेरे तो 100 ही है यार, तेरे तो 100 ही है. दीस थिंग्स प्राइवेट अकाउंट भाई नहीं चाहिए हमें फालतू के लोग हमारे उसमें. नहीं, तू कहना क्या चाहती है? तूने 2 बार बोला प्राइवेट, मेरा पब्लिक है, तो इसमें क्या हो गया? ओहो, तेरा पब्लिक है. ओह नो, आई एम सो सॉरी. जिसका अकाउंट माना था उसने तो सुना था. सॉरी ब्रो. exceptions apply there, right? I'm an exception. Cool. अच्छा, सच तेरा love for biology? Yeah, love for biology. There was a नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये चीज, और कोई और ही सुन ले. कि मतलब ठीक है, love for biology it's over. आज +2 तक कैसा होता था ना कि किरण को कोई भी सब्जेक्ट पूछो, which is your favorite subject? Bio is my favorite subject. Was that because of the teacher or was that you asked that मतलब that sir I got, ठीक है यार, I seriously have immense गुरु भाई कि मतलब जो भी बोलते थे अभी भी सर के लिए सुन ओवरलैप हो रहा है. सुन, मेरे दिल में अभी भी सर के लिए मतलब रिस्पेक्ट है भाई. कॉल सर ओपी. जितनी मर्जी डांट खाई है ना, बट दैट वाज वर्थ इट. यार वो सर बोलते थे ना, वो एक्चुअली हमें लगता था कि हाँ सही बोल रहे हैं, भाਵੇਂ वो सानू ही बोल रहे होंगे सी, बट स्टिल हम लोग फील नहीं करा कभी भी उनकी बातों का. और वो भी तो सुन कि मतलब कि वो बेइज्जती भी ऐसे करते ना, लगे भी ना, बट इतनी जोर की लगती थी ना वो अंदर डीप इन द हार्ट. कि जैसे ना आफ्टर 10th वी यूज्ड टू स्कोर सो मच गुड मार्क्स, है ना, 50 में से 49 आ गए, 48.5 आ गए टाइप्स, मतलब इससे तो कम आए ही नहीं कभी. तो जब आए हमारे
+1 की बारी आई, वी टुक बायोलॉजी में हमारे मार्क्स आ गए, मतलब मी एंड अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स जो अच्छा स्कोर करते थे, तो इट वाज लाइक कि मार्क्स हमारे आगे कम, एंड सर वाज लाइक कि मैं तो तुम्हें एटम बॉम्ब समझता था, तुम तो फुक्की बम निकले, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड भाई साहब। उसके बाद हम हंस सर यार, सर सच्ची बहुत सही थे। एक सर और एक हरदीप मैम भी बड़े सही थे, अगर ह्यूमर का मामला देखें हम। हाँ एग्जैक्टली, वो तो भाई हरदीप मैम तो नेक्स्ट लेवल, गुस्से में भी बोलते अगर मान ले किसी ने बॉटल उठा के पानी पीने लग गया, मैम पढ़ा रहे हैं ना, बोल तो यहाँ मैं रही हूँ, प्यास तुम्हें लग रही है, हाँ बट लाइक वो हैं subjects were not fun for me क्योंकि medical was not my first preference, but teachers were totally fun. टीचर्स नहीं यार, टीचर्स वर फन, पर हाँ वो एक होता है ना कि हम लोग भी एंजॉय कर लेते थे यार। नहीं, मैंने तो एंजॉय करी है। हाँ, 2 पहले पॉइंट्स पे जाके मैं भी इट वाज लाइक कि मैंने नॉन मेडिकल ने मेरी ले ली, वो पॉइंट, वो लाइन हो सकती है मेरे ये सही है। पर आफ्टर दैट ग्रेजुअली मेरे को था कि अब ले लिया, अब तो चाहे जुनून है चाहे मतलब है, पर अब करके दिखाऊंगी। तेरा ये था, एंड आई वाज लाइक कि मतलब कि +1 +2 तक आई वाज लाइक कि हाँ भाई मेरे से नहीं होगी, ठीक है, एंड तक मैं यही थी कि मेरे से नहीं होगी। पर जब आए एग्जाम्स भाई साहब, आई डोंट नो कौन सी फायर मेरे अंदर जागी, आई वाज लाइक 90+ ना आए ना, बस वहीं पे दुनिया खत्म है मेरी, ठीक है। तो इतना मैं जीऊंगी अगर मेरे 90 से ज्यादा नहीं आए यार। वो तो कहने की बात होती है, ऑब्वियसली एवरीवन लिव, इट्स जस्ट दैट कि मतलब अपने आप को मोटिवेट ऐसे करा ना, हाँ, कि मतलब बस खत्म है कि मतलब जो मर्जी। यार मेरे को बहुत, आई वाज सो कॉन्शियस कि सारे कहेंगे कि एकेडमिक, यार लोग क्या सोचेंगे, उस टाइम पे आता है, +1 +2 में आता है ब्रो, ठीक है, आता है। अब लगता है कि वो चीज बिल्कुल ही मतलब जो आपका हरकत सीगी, पर नहीं आता है डूड, आता है। और यार ठीक है, कंपटीशन में अगर नहीं जाओगे तो फिर ग्रो कैसे करोगे? मैं तो हाँ, पर यार ठीक है, 10th और +2 के मार्क्स मैटर करते हैं, और nobody should forget that. Everybody should study. जैसे मैंने पढ़ाई करी थी। Exactly, और that competition teaches you a lot. कि मतलब कि भाई मतलब इन्होंने टॉप करना है पूरे इंडिया में। एंड के 2 महीनों में ऐसे पढ़ी थी मैं, क्योंकि सारा साल केमिस्ट्री में you always suck. यार वो तो याद ही मत करा। That was the, और एग्जैक्टली एंड पे आई टोल्ड यू राइट कि मतलब कि जब क्लास में भी जब मैं शीट लेने गई थी, शॉक हो गए थे। एंड सर वाज लाइक ओह माय गॉड, ये इतने मार्क्स कैसे आ गए? तो मैं थी सर बोला था पेपर मेरा अच्छा हुआ, यू डिडंट नोटिस। मैंने तो बोला था सर इतना अच्छा हुआ पेपर, आपने तो सुनी नहीं मेरी बात। सही है वो मतलब यार यू नो कि मतलब वो तो इट वाज लाइक कि बस या तो आर या पार, वो सिस्टम था मेरा केमिस्ट्री में। यार केमिस्ट्री तो फिर ठीक थी। मेरे को मैथ्स अच्छी लगती थी, मतलब तेरे पास मैथ्स ही ना थी, मेरे को मैथ्स लगती थी, बस मैथ्स में था डर। 2 मेरे को ना कॉन्सेप्ट सारे आते थे पर आंसर नहीं निकलता यार, कभी भी नहीं निकलता था, पता नहीं दिक्कत ही क्या थी उसमें। पर यार मैं ये चीज मिस करती हूँ यार, मेरी +2 रह गई कोरोना की वजह से। तेरी +2 रह गई, एंड व्हाट अबाउट माय कॉलेज लाइफ? दैट हैज बीन रूइंड कंप्लीटली। वो तो है ही, वो तो रियून नहीं होगी, खत्म ही है, 2 साल हो गए, 2 या तीसरा चल रहा है। आवर पर्सनालिटी वाज लाइक सो गुड। अगर कॉलेज लाइफ हमारी साथ में शुरू हो जाती ना, तो वी कुड हैव मेड सो मेनी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे जोन के, हमारे पैशन के, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते थे। बट ठीक है, नॉट टू ब्लेम द सिचुएशन, ठीक है, व्हाट हैपनिंग दैट वाज मेंट टू बी। मतलब यू आर सेइंग कि अगर तू कॉलेज मतलब ऑफलाइन कॉलेज जाती, या पागल, क्योंकि स्कूल के बाद वी हैड अ ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, हमें पीयर प्रेशर हो चाहे जो मर्जी हो, हमें पता था हमने क्या करना है लाइफ में। बट ये कोरोना थिंग दैट रियली सक्स बीच में जो आई है ना, दैट हैज बीन अ बैरियर फॉर मी एट लीस्ट, फॉर एवरीवन आई गेस, फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स के लिए है यार। तू सोच, हमारे जो छोटे मतलब जूनियर है, वो तो कितने साल हो गए स्कूल नहीं गए,
है ना, 2 साल हो गए है ना आराम से। उनका तो बेस ही बिगड़ गया। जिन 9वीं 10वीं 8वीं वालों का तो लाइक 7th 8th 9th वालों का तो बेस ही बिगड़ा हुआ है। वो 10th में क्या करेंगे, क्योंकि घर पे कौन पढ़ता है यार, और पेपर भी ऑनलाइन। दैट्स द पॉइंट, राइट। और पता है एजुकेशन सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है ना, वैसे हमारे एग्जाम्स मोस्टली प्लस मतलब जिनके हो जाते हैं वो अब मार्च में लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, स्कूल ने। बट अभी रिसेंटली जब आया ना कि मतलब फरवरी में लेने लग गए हैं एग्जाम्स, तो रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर मार्च में खुल गए दिनों की लोगों को कुछ आता तो है नहीं, बच्चे तो वेले बैठेंगे पेपर लेके, खाली शीटें पकड़ाएंगे। तो इससे अच्छा फरवरी में लेके खत्म करो। अगर लॉकडाउन ना लगा तो पेपर हमें ओरिजिनली लेने पड़ेंगे स्कूल में फिजिकली। तो ये जो कैसे हो रहे हैं अब फेब में हो रहे हैं या ओह शिट। पर यार ये गलत है, गलत। अब क्या कर सकते हैं, इट्स लाइक इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द सिचुएशन। हम लोग अब क्या भी कर सकते हैं, हम लोग सबके साथ ही हैं। या हमारा तो कर सकते हैं हम। यार मैं तो ठीक हूँ, हाँ चल ठीक है। कॉलेज अभी मैं तो जा आई हूँ ना यार 2-3 महीने ऑफलाइन मोड में। अभी आई एम लाइक नहीं, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा था पूरा। यार मैं 4 बजे घर आती थी, तू सोच, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आके सो जाती थी। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं लगता था दिन कैसे बीत गया। सुबह चले जाना, तो हाँ कुछ भी नहीं हो पाता था, कुछ भी प्रोडक्टिव है। I don't even remember कि हम कैसे उठते थे सुबह। मैं ब्रो ये तो मुझसे भी मत पूछ। We guys are night owls. Yeah, I used to study at night. हम लोग यार, हाँ this is the point. लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना I won't. My हाँ preference, I cannot study. exactly. सुबह का याद किया वो कभी नहीं भूलेगा। And I'm like no, this is not gonna work with me. नहीं भूलेगा क्योंकि सुबह तो सोते हैं हम। हमें तो भूल जाएगा। हाँ, और वैसे भी I have a challenge right now. Like I like challenging my. हाँ और वो challenge भी I want to share. रुक जा वॉइस ओवरलैप कर गई फिर से। हेलो हाँ अब बोल। I'm a challenge कि I want to use Instagram for at least half a month. Let me just मतलब it's just time span मैंने अभी बनाया कि half a month, क्योंकि already it's been 1 week, तो देखते हैं कब तक चलता है। अच्छा मतलब तूने ऐप अनइंस्टॉल करी हुई है या ऐप है फोन में, बस तू खोलेगी नहीं? पागल, क्योंकि ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी तो that doesn't mean I'm controlling my life. ठीक है, कंट्रोल सामने है, you are not clicking. यार दिस इज इनसेन। इसके लिए तो सच में चाहिए करेज चाहिए। Insane, yeah. If I tell you, जब I was being a little unhealthy, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत unhealthy था, वेट हो रहा था, तभी I did the same thing. I left Instagram and मैंने अपनी ID डिलीट करी थी, and then I made the new ID जब मैं exactly अपनी perfect size and shape में थी। उसके अच्छा बाद मेरे को ये हाँ सच ये बात ना हमारी हुई ये। अच्छा सुन बता, व्हाट वेट लॉस जर्नी बताइए। मतलब हम लोगों ने that one day I was just sitting idle क्योंकि 2020 में और कुछ काम तो था नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन पहले लगे थे, तो यू वर लाइक कि क्या ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि काम तो था नहीं, हम अभी तो खत्म हुई थी मेरी स्कूल लाइफ। तो I was just sitting idle and I was like कि क्या करा जाए, ठीक है, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। So I was just watching myself in the mirror and I was talking. I like talking to myself क्योंकि वैसे भी कोई नहीं समझता मेरी बातें। Everybody thinks it's sad. तो ठीक है, अपने आप से बातें करो, it's fine. So I was watching myself in the mirror. I was like यार क्या है कि क्या हो रहा है मेरे को, कि पहले मैं कितनी अच्छी थी, now I'm getting into like so much unhealthy things. तो फिर I decided कि भाई अब Instagram डिलीट होएगा, बनेगा तब जब I'll be proper fit and fine. तो वो हुआ भी परफेक्ट। मैंने अपना मार्जिन रख ली थी कि हाँ भाई मेरी मतलब प्रॉपर फिगर साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, दैट वाज माय परफेक्ट साइज, वो मैंने लिख के रख लिया था। एंड माय आइडियल वेट जो होना चाहिए वो मैंने लिख के रख लिया था। और जब एग्जैक्टली हुआ ना, तभी मेरी इंस्टाग्राम आईडी शुरू हुई थी, मैंने नई बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी, आई स्टार्टेड, क्योंकि आई एम एडिक्टिव।
क्यों अगर उस पे कंट्रोल आ गया ना तो यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। किस पे कंट्रोल आ गया? इंस्टाग्राम पे, क्योंकि that thing is so much addictive। रील्स खोल लो खत्म ही नहीं होती। रील्स तो भाई मैं चलाती नहीं हूँ, वो तो स्क्रॉल है ना? करना इज जस्ट, मतलब मैं तो हाँ एक्सप्लोर पेज फिर देख लूंगी मैं, क्योंकि फिर बंदे को 1 या 2 मिनट मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के बाद ना फील होने लग जाता है कि और ज्यादा स्क्रॉल करके करना ही क्या है। मैं तो खोल सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हो। मैं तो बिल्कुल नहीं करती यार, रील्स तो मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहती। एक रील्स होती हैं और एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, ये दोनों चीजें जस्ट यूट्यूब में आई एम नॉट इनटू यूट्यूब, ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स भी मैंने अभी रिसेंटली, एंड आई हैव रेड इकिगाई व्हिच इज अ परफेक्ट बुक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ इफ यू नॉट गेट। हाँ तो यही पूछ रही थी ना कि मतलब क्या पढ़ा है, दिस इज व्हाट आई हैव रेड, इकिगाई। हाँ नाइस। हाँ ये इसके बारे में तूने मेरे को बताया था ना। Yeah. We had to talk about books, right. But so that is so addictive, मतलब once you read it, अगर आपको इंटरेस्ट है to find actually you want to find the purpose of your life, अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी लाइफ थोड़ी सीरियसली लेने का तो you can definitely try out, क्योंकि जब तू स्टार्ट ही करेगी ना ब्रो, इट इज सो एडिक्टिव कि वो पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होगी बुक। मतलब मैंने ऐसे पढ़ी दिन में, इट वाज जस्ट खत्म। बीच में थोड़े बहुत काम होते थे क्योंकि पता है घर के भी करने पड़ते हैं थोड़े, एक कर लेगा हम तो या बहुत बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आई हैड टाइम फॉर दैट बुक क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वाओ नाइस। मतलब ऐसा होता है ना कि बुक हमने पढ़ ली फिर हम बंद कर देते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनी, है ना, कि हम लोग बस पढ़ते हैं एक 2 3 मैक्स पेजेस पढ़ लिए फिर बंद कर दिया। और ये जो होती है ना ये सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स, इनसे तो यही होता है कि हम लोग, यू आर रॉन्ग हियर, कि मतलब अगर किसी को सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो ही वो उसको इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि दैट इज द पॉइंट कि हम लोग अगर मान ले मैंने पहले कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करा और मेरे को बस ठीक है हाँ मेरे को नॉलेज के लिए चाहिए, फिर तो मैं पढ़ूंगी। नहीं चाहिए ना नॉलेज, बस मैं वैसे ही बुक लेके आई हूँ, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी और 2-3 पेज पढ़ के छोड़ दूंगी, फिर बंद कर देते हैं हम। और फिर हम वी गाइस जस्ट क्लेम कि वी डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, हमें इंटरेस्ट नहीं आता। दैट्स जस्ट स्टूपिड थिंग। You need to choose the perfect choice for yourself. Exactly. Some people like, चाहे जो मर्जी हो, चाहे choice of books, choice of people, choice of your interest, जो मर्जी हो, you need to think about you. जो तुम्हें पसंद है वो करो। वही तो वही the point is metrics on the basis of which you actually judge yourself is the most important thing you can ever try in your life. Yeah. अच्छा अभी रुक अभी let me comment on that your weight loss journey. So that was too insane. मतलब हाँ तूने बस इसलिए सोचा कि कुछ नहीं करा जाए तो बस weight loss करा जाए। Wow, nice. नहीं, it was like मतलब what value I can add to my life, क्योंकि मतलब वही हो गया ना, existential crisis होने लगे थे लॉकडाउन में कि मतलब existing, क्योंकि इतने कल्ले फील हो रहा था क्योंकि यार कुछ भी बात नहीं कर सकते। Everybody says bad यार, थोड़ा get some life, क्या हो गया। और उस टाइम पे तुम्हारा ये भी था ना, तुम्हारे प्रेशर भी था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का क्या बनेगा, ये चीज भी थी। आई रिमेम्बर। पर ब्रो द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन विद योर बॉडी, इट्स टू गुड। लाइक अभी अगर मैं तेरी पुरानी पिक्चर देखूं, जैसे तूने कल परसों मेरे को भेजी भी थी, मत देख यार मत देख नहीं, पर मैं सोचती हूँ ये वो बहुत चबी यार, तू इतनी भी मोटी नहीं थी बट स्टिल हाँ बबली सी थी तू। पर अभी अगर मैं तो मुझसे भी पतली है यार। हाँ पर यार ये भी बात है कि मतलब अगर मैं मोटी भी थी या आई वाज स्टबी और व्हाट, नोबडी हैड द ऑडेसिटी टू से इट टू माय फेस। वही हो गया ना कि मतलब कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी मैटर्स। ये चीज मर्जी बोल, बट nobody had the audacity to say it to my face. Exactly, and this was the case with me. You cannot come and stand in front of me और तू मेरे को offend कर सकता है, वो चीज नहीं है और अभी भी नहीं है। वही है ना कि मतलब हमने अलाउ ही नहीं करा कभी को किसी को ऑफेंड करने का मौका नहीं दिया बेचारों को। इट्स लाइक भाई हम वो करेंगे, who are you to say?
मैंने बताया आफ्टर स्कूल क्या, हाँ इन स्कूल या ये ऑनलाइन वाला मोड है ना, +2 में आई लिटरली गॉट कमेंट, मतलब मेरे को एक मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि मेरे को उसके किसी नोन बंदे ने बोला है कि यू आर, मतलब मेरे बारे में बोला कि शी इज नॉट दैट काइंड इनफ, शी इज नॉट दैट हम्बल इनफ, लाइक उसके साथ तो वी कैन नॉट बी इन गुड टर्म्स बिकॉज शी इज टू एरोगेंट, शी इज टू एटीट्यूड वाला पर्सन, वो फ्रेंडशिप नहीं रख सकते। लाइक आर यू सीरियस, जस्ट कम एंड से इट टू माय फेस, और हैव यू एवर टॉक्ड टू ये सोच नहीं सकती यार, इट हर्ट्स। मैं तेरे बारे में नहीं ये सुन सकती, मेरे बारे में लोग कह सकते हैं क्योंकि आई एक्चुअली डिडंट लाइक पीपल, आई डिडंट लाइक टॉकिंग टू पीपल ज्यादा। तेरे तो वो मैसेज का स्क्रीनशॉट है, मैं देखो वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजूंगी। आई सीरियसली आई वाज लाइक हु आर यू, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैंने तो कभी एटीट्यूड शो ही नहीं करा। मैं तो हमेशा हाँ चल ठीक है हंस के बात कर लेती हूँ, बाद में अगर नहीं पसंद आया तो चल ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं बात करनी। फर्स्ट गो में तो आई गिव माय लाइक, मैं बात करूंगी अच्छी तरह बिकॉज आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। मेरे को someone also texted me कि मतलब कि when it was my birthday they were like कि someone took my number from somebody and texted me कि happy birthday, and I was like thank you the third time। क्यों? क्योंकि already they had texted और दूसरे बंदे को भी बोल चुके हैं कि उसको विश कर देना, ठीक है। तो I knew उन्होंने भी मेरे को मैसेज दे दिया था, तो I was like thank you the third time, and the person said कि मेरे को ना चलो आपको बता दिया था। मैं क्या हाँ जी बता दिया था। कहते मतलब he or she was like sorry the way you say he or she तो भी है, तो उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था आप अब रिप्लाई भी करोगे कि नहीं। मैं क्या यार भाई क्यों, ऐसा भी क्या हो गया, मैं रिप्लाई करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो कहता कि नहीं यार आप ना बहुत दहशत वाले बंदे थे स्कूल में। मैं क्या है ये किसने बोला तेरे को? यार ये चीज ऑब्जर्व करी कभी, मतलब कभी क्या तू सोची, जो बंदे होते हैं ना एकेडमिक रिकॉर्ड्स में अच्छे, उनको लगता है वो सारे है। हमें लगता है कि जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने हमारे लिए बैरियर क्रिएट किया, उनको लगता है कि हमने उनके लिए बैरियर क्रिएट किया है। हाँ यही मैं बोल रही हूँ। और उनको अगर कोई टीचर कुछ बोल देगी वो बहुत फील करने लग जाएंगे। ठीक है, मान ले किसी टीचर ने तेरे को थोड़ी देर के लिए बोल दिया इन फ्रंट ऑफ क्लास, तू उस चीज को लेके बैठ जाएगी। अगर तू उस पॉइंट पे होती है ना, विच माइट हैव हैपेंड है ना तेरे साथ भी, अगर किसी टीचर ने तेरे को कुछ बोल दिया तू उस बात को लेके फील करने लग जाएगी कि हाउ शी, मान ले कंपेटिटर और तुझे कंपेयर कर दिया तो भी तो फील करेगी, विच इज एक्चुअली लाइक बहुत मतलब वो पॉइंट है कि हाँ ये हिट कर जाता है, लोगों को हर्ट कर देता है एक्चुअल में। और फिर वो उन्हें समझ नहीं आता कि हम everybody has a different talent and different perspective। ये होना नहीं चाहिए comparing and all। comparison यार हमारे साथ भी किसी के साथ कर दोगे ना, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। Exactly। पर मैं तो ये बोलती हूँ comparison is good at some sense, but it is destroying on somebody's next level, right? Yeah. For sure. यार पता है क्या, comparison if we do ourselves, ठीक है, हम खुद करें अपने आप को compare किसी के साथ, ठीक है, in a good sense कि मतलब हाँ वो चीज उसमें ज्यादा better है and how can I improve that thing in myself, तो which is a thing। but अगर कोई और compare करे वो चीज बहुत चुभती है, and that's true, that hits hard। वो confidence को इतना down कर सकती है ना भाई यार, वो ट्रिगर देती है। मान ले फॉर एग्जाम्पल यू और तेरी कोई फ्रेंड, ठीक है, तेरी कोई फ्रेंड और तू बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसने एक बार तेरे को बोल दिया मोटी, दूसरे एक बार चल तूने हाँ चल ठीक है तू और वो एक गुड टर्म्स में है कि हाँ, फिर तूने उसको मतलब जैसे उसने तेरे को बोल दिया मोटी, तूने लेट गो कर दिया, ठीक है। सेकंड टाइम मान ले तूने लेट गो कर दिया, थर्ड टाइम उसने बोला कि यार द अदर पर्सन कम एंड लाइक वो मेरे को बोलता है कि योर फ्रेंड इज सो मोटी ये वो, तो फिर उसके बाद लाइक आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स एनीमोर, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेम एग्जांपल है बट स्टिल फॉर एग्जांपल, है ना। वो पॉइंट पे ये चीज तेरे को बहुत जबरदस्त ट्रिगर कर जाएगी कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को डंप करा फॉर एग्जांपल,
और उसने ये बोल के करा कि यू आर मोटी, यहाँ पे तेरा ये कॉन्फिडेंस बात नहीं होती है। होगा। पता है उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता, बट नाउ अगर मेरे को कोई बोल भी दे रहा तो आई एम लाइक आई नो माई सेल्फ, इट्स ओके, आई कैन हाँ सी माई वही तो मैं बात कर रही हूँ ना कि योर कॉन्फिडेंस वैसे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, अगर जो किसी और की बातों में आ गए तो हमारे फ्रेंड्स ही नहीं है ब्रो। ठीक है, लेट दैट पर पर्सन। ये चीज तो हमें वही है ना, ठोकर ठोकर खा के ही तो अक्ल आई है, पर कई लोगों को नहीं आई होगी ना, तो हम एड्रेस कर रहे हैं टू अ वही पीपल। जैसे वो नहीं कहता है कि बहुत गिरे हैं उसके बाद सीखे हैं, तभी तो सीखा एग्जैक्टली, है बंदा। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एड्रेस करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस ट्रिगर करेगा आउटर पर्सपेक्टिव से, मतलब आउटर जो भी तुम्हारे जजमेंट्स होंगे, लोग जिस पर्सपेक्टिव से तुम्हें जज करेंगे, पर उस पॉइंट पे ट्रिगर नहीं होना है। उस पॉइंट पे बस उन्हें जवाब दे देना है, दिस इज हाउ आई एम डूड, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट वॉक ऑफ। यार व्हाट आई फील इज, जहाँ पे रेलेवेंट ना लगे ना जवाब देना तो जवाब भी ना दो, जस्ट लीव इट। मैं भी यही बोलती हूँ यार, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, साइलेंस इज द बेस्ट वेपन यू कैन यूज। मतलब अगर फर्क ही नहीं पड़ा तो तुम्हें रिप्लाई भी क्यों करना है। हाँ, जिस पर्सन से तुम्हारे लिए मैटर करता है, सपोज दैट पर्सन मैटर्स अ लॉट, तो वहां पे क्लियर इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि फिर अंडरस्टैंडिंग पे बात आ जाती है। राइट उस राइट राइट, जहाँ पे वेरी इम्पोर्टेंट। और जहाँ पे उस बंदे ने बोल भी दिया तो वहां पे नहीं करना चाहिए। राइट, जहाँ पे तीसरा बंदा बोल रहा है और तुझे बस हिट कर रहा है, मतलब तुझे हार्ड, मतलब एक पॉइंट के लिए लग रहा है बस, ठीक है उसको जाने दे और खुद को समझा कि नहीं, उसका ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता। पर हाँ, अगर तुझे लगता है कि बोल, जैसे यार आई वाज ऑलवेज रेडी टू फाइट, पता नहीं यार मेरे मन में आता था, स्कूल में हम लोग बोलते थे ना, चल यार किसी से लड़ते हैं, चल यार किसी से लड़ते हैं, हमारे ग्रुप में ऐसा होता था, क्लास ग्रुप में, लाइक हम लोग हमेशा तैयार रहते थे लड़ने के लिए। पर हाँ, दैट वाज अपार्ट फ्रॉम जोक्स, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, सारा ही ग्रुप हमारा कॉन्फिडेंट था अगर मेरी क्लास से देखा जाए। और वैसे भी यार चिढ़ने वाले बंदे को ना बंदा और चिढ़ाता है। मैंने ये काम बहुत किए हैं स्कूल में बहुत ज्यादा। कैसे तो कैसे? चिढ़ता है ना, जैसे मतलब कि समवन गेट्स इरिटेटेड, ठीक है, हमें पता है कि वो बंदा इरिटेट हो जाएगा और जिस बात से होगा हमें वो भी पता है, तो वी ऑल्सो स्टार्ट इरिटेटिंग, चाहे वो हमारा फ्रेंड ही हो, है ना, जान के, मतलब जस्ट टू मेक फन। ये नहीं है कि मतलब हाँ चीज वो ट्रिगर कर जाए किसी को, वो चीज नहीं हम करते थे, बट मुझे इरिटेट करने में बहुत मजा आता है टू एवरीवन। और वही, वो तो फिर तेरा एक कंफर्ट लेवल है ना किसी के साथ, तभी तू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी ना। नहीं, पागल है, मतलब किसी को भी नहीं कर सकते। हाँ, जिसके साथ है कंफर्ट जोन उसके साथ ठीक है। हाँ, और यही है ना कि हाँ उस लेवल तक ही करेगी जिस लेवल तक उस बंदे को एक्चुअल में ना लगे। ये चीज नहीं लोग समझते हैं। हाँ जी, और ये चीज मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है कि मतलब यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजंस, अदरवाइज पीपल विल टेक योर डिसीजंस एंड वो डिसीजन विल स्क्रू योर लाइफ। ये चीज बहुत अच्छी सीखी है। डिसीजंस एज इन डिसीजंस कुछ भी, मतलब अगर लाइफ में छोटा से छोटा डिसीजन भी है ना, जहाँ पे आपको पता है कि मतलब यू आर द वन, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। नेवर लेट एनीबॉडी एल्स, क्योंकि वो एल्स's डिसीजन इज गोइंग टू रूइन योर लाइफ, और फिर रिग्रेट करते बैठोगे। मेरे साथ हुआ ये कि उस टाइम पे मैं बोल लेती, या उस टाइम पे मैं सोच लेती, या उस टाइम पे मैं हाँ ठीक है, किसी और की बातों में ना ही आओ तो अच्छा है, ना ही आओ तो अच्छा है। राइट राइट राइट, योर मेंटालिटी will actually like shape your life the way you want to. या वही चीज टेलिंग यू ना कि मतलब कि जैसे ही मेरी सोच, माई थिंकिंग चेंज्ड, ठीक है, माई पर्सपेक्टिव्स एब्सोल्युटली चेंज्ड, माई चॉइस ऑफ पीपल चेंज्ड, ठीक है, वो जस्ट किसकी वजह से हुआ? क्योंकि माई थॉट्स एंड माइंडसेट चेंज्ड। मतलब थोड़ी देर पहले यू नो वेल, जैसे तूने मेंशन भी किया था कि मतलब मैं सिर्फ सुन रही थी, आई डिड नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड, कि मतलब ऐसी हो गई थी कि मैं तो सिर्फ सुनती ही रहती थी, आई हैड नथिंग टू रिस्पॉन्ड इन रिटर्न। तो वो भी चीज सोच के देखो कि
आप कहाँ कॉन्फिडेंट थे, क्या स्कूल में पर्सनालिटी थी, एंड देन यू आर मूविंग टू दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी जहाँ पे यू हैव नथिंग टू से इन फ्रंट ऑफ द पीपल जो आपके बहुत क्लोज हैं, ठीक है, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो एवरीथिंग, एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, एंड हाँ हाँ ठीक है, समझ कुछ नहीं आ रहा. दैट इज द लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे आप शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ सुन रहे हो बैठे कि समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है. ना मेरी बात सुन, हमें टाइम ही क्या हुआ है, हमें महीना भी नहीं हुआ होगा और तू इतनी जल्दी बाहर निकल गई. दैट्स मतलब दैट नीड्स इमेंस करेज. सो हैट्स अप टू यू कि तू निकल गई छेती. नाइस. अदरवाइज ये ना हो रहा होता. हाँ नहीं हो रहा होता. टाइम चाहिए. Of course, you'll be like नहीं यार अभी I want to be more confident. यार ये कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, और ये एक्चुअली इट हैज वैल्यू इन योर लाइफ. Bro, it has value to another level. सुन, मान ले just for instance, तेरे पास 70% स्किल है और 30% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और मैं तेरे को एक पूरे हॉल में बिठा देती हूँ जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उसी प्रॉपर स्किल में जहाँ पे तेरे पास 70% स्किल है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उसी स्किल में जो मास्टर है, ठीक है, तू भी मास्टर ही है अगर 70% तेरे पास है नॉलेज उस पर्टिकुलर स्किल की, पर तू वहाँ पे स्टेज पे जाके नहीं बोल पाएगी क्योंकि तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. फोन लाइयो जहाँ पे भी रखा हुआ है. हेलो. हाँ फोन ना हिलाइयो, स्टेबल रहने दे, ठीक है. हाँ तो फिर मतलब अगर तेरे को उसने स्टेज पे बुला दिया तू अपना 100% नहीं दे पाएगी बिकॉज तेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का. तू वहाँ पे जाके शेक कर जाएगी, तू वहाँ पे जाके शिवर करेगी, एवरीथिंग यूल डू. बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर तेरे पास 70% कॉन्फिडेंस है, 70% तो यार ज्यादा हो गया, एज इन 60% कॉन्फिडेंस है और 40% योर स्किल, you'll actually deliver it more than the other person जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. एग्जैक्टली. तो तू कहीं तो स्टैंड कर जाएगी ना, पर आजकल की लाइफ में तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है डूड, यू कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर. nobody will respect you because तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों के सामने खुद को एक जैसे होता है ना शोमैनशिप दिखाने का, शोमैन स्पिरिट ही नहीं है तुम्हारे में. फिर that's the point. और वैसे भी अगर तुम अपने आप के लिए जैसे मतलब स्टैंड नहीं लेते ना, तो यार वो लोग फिर तुम्हारे लिए जो स्टैंड लेते हैं ना वो बहुत नेगेटिव हो जाता है फिर. I can relate to this fact. ये भी स्टोरी है एक. Yeah. Just kidding. I'd like to hear, अगर वैसे यहाँ पे नहीं, in some other thing, वैसे प्राइवेट में जब बात करेंगे तब. Sure. Anytime. पर वही तो पॉइंट है ना कि अपना जैसे तूने बोला डिसीजंस लेना खुद आना चाहिए. पर चल कोई ना, मैं ये सोचती हूँ कि every experience is meant to teach something. और ये बहुत every person is meant to be in your life to teach a lesson or stay. वो decision उनका है, but every person has a meaning in their life. कुछ भी यार, कोई भी इवेंट होता है तेरी लाइफ में वो तुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा. The point is तुझे बस ये फिगर आउट करना है कि उसने तेरे को क्या सिखाया, फिर उस पे वर्क कर बस. और वैसे भी मतलब वो भी यार. हेलो. हाँ, मैं सोच रही हूँ हम लोग बहुत ज्ञानी बातें कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू. हम लोग इन चीजों से तो निकले हुए हैं. मैं और तू भी निकल चुके हैं. चाहे जो मर्जी कह लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट या आई हैव गॉन थ्रू दीस थिंग्स. और हम लोग निकल गए हैं. बस अभी we'll learn, we'll grow, we will not care whatever the other person is saying. That is, we don't give a shit attitude अब आ चुका है, so bang on. Exactly. Right. यार genuinely I don't care, जो मर्जी कुछ भी बोल जाए, I really don't care. मतलब अगर a month back तुम मेरे से मिलती ना, तो मेरे से बात करती, उससे भी ज्यादा माड़ा हाल होता मेरा. Like the way you were meeting me. जब तू कह रही कि हाँ ठीक है मैं कुछ सुन रही थी, बस रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो चीज तो उससे भी ज्यादा worst thing you will say कि हाँ भाई इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. मैं ऐसी हो गई थी a month back.
पता नहीं व्हाट हैपेंड टू मी। फिर मैंने एक रात मतलब पूरी नाइट आई जस्ट मतलब मैंने बोल दिया मम्मा पापा को कि हाँ जी आई नीड टाइम, ठीक है, आई एम स्टडिंग समथिंग। तो वैसे मैंने बोल के आई वाज इन माय रूम एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई लैक इन। तो मैंने सोचा, तो आई जस्ट कीप kept writing the things जो मैं मिस कर रही हूँ इस टाइम पे और कैसी मैं थी एंड व्हाट आई हैव बिकम। तो मैंने पूरी ट्रांजिशन की लिस्ट बनाई, ठीक है, एंड देन आई थॉट कि कैसे आई कैन ओवरकम दीज थिंग्स। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट कि मतलब कि कैसे मैं ओवरकम कर सकती हूँ, ठीक है, कैसे मैं शट ऑफ कर सकती हूँ पीपल जो ठीक है नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं उस टाइम पे मुझे। तो मैंने उनको इग्नोर करना शुरू किया सबसे पहले, एंड देन मैंने अपना ट्राई किया था कि समथिंग न्यू, वो नहीं हुआ, ठीक है फाइन, बट एट लीस्ट ये हो गया कि आई ओवरकम दैट शिट आई वाज बिकमिंग उस टाइम पे। और वो इतना नेगेटिव हो गया था कि मतलब कि वही डाउटिंग योरसेल्फ एंड ऑल कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो बहुत गंदा फेज था भाई। किसी को चाहिए। बाकी हमसे भी ज्यादा यार बहुत लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं ब्रो, बहुत ज्यादा है। हम तो यार we should be happy enough that we are lucky that we are staying with our family. If we would have gone abroad as if हमारे एज के स्टूडेंट जाते हैं, I don't know कि यार इस एज में too early bro, it's too early। पता है एक से खुश होना चाहिए कि जो मर्जी हम करते हैं people envy us for sure। तू सुन, मैं खुशी इतनी सेटिस्फेक्शन भी हैव कि मतलब कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं। ये नहीं है कि मतलब वी आर एनविंग समबडी एल्सेस लाइफ कि उसकी लाइफ हमें कोई जेलसी हो रही है कि हाँ उसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों, हमारी ऐसी क्यों है। राइट, वी आर हैप्पी विद व्हाट वी आर इन आवर लाइव्स। we are satisfying। I'm saying like this, envy us in the sense, मैं देखो बताती हूँ अभी whatever the stuff I'm doing है ना, YouTube thing or whatever like that, मेरे को पता है मेरे बारे में shitty comments भी आएंगे, मतलब though in not presence, absence में तो आएंगे ही of course, है ना, but I don't care। I know कि maybe some of the people like listening, like okay, एक बंदा भी सुने, दो बंदा भी सुने, at least I'm adding some value to that one person, to that two people or whatever। You are not able to add in someone else's life, you are adding in your own life, ठीक है। The confidence you're getting and the person you're becoming by doing this thing यार, कि that's commendable। कि अगर तेरे में भी अगर ग्रोथ देखे ना तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ये नहीं था कि मतलब वी वर जस्ट थिंकिंग, ठीक है, यू वर जस्ट टेलिंग मी कि हाँ भी आई एम थिंकिंग कि ये करूँगी टाइप्स, ठीक है। इवन योर फ्रेंड्स थिंग ऑल्सो स्टार्टेड, है ना, कि मैं फ्रेंच सीखूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट टीचिंग, दैट इज ऑल्सो दैट रियली इज कमेंडेबल ब्रो। बंद ही कर दिया तो स्टार्टेड। हाँ राइट यार, वही तो ना, मतलब हाँ चल ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और वैसे भी अगर तू कह रही है ना कि मतलब कि एक बंदा भी सुनता है, दो बंदा सुनता है, इट्स करेक्ट, बट अगर यही तो सोच कि आफ्टर 1 year यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन योर वीडियोस, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। हाँ अभी अरे 1 year छोड़, यू विल बी सैटिस्फाइड एज हेल कि मतलब मैंने ग्रो छोड़। मैं लास्ट की 4 महीने पहले, मतलब 4 महीने हो गए होंगे अब मेरे को करते हुए, है ना, कंसिस्टेंट रहते हुए टचवुड। तो मैं पहले की भी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार मैं पहले इतना डम लोगों की तरह क्यों बोल रही थी, hello everyone, मतलब I was like this and now I'm like hi everyone। this is a difference in my voice thing, which is दिस थिंग एवरीबडी डज, ठीक है। पहले होता है कि हाँ भाई इंप्रेशन बनाने, तो वी एक्वायर सम डिफरेंट एक्सेंट एंड ऑल, ठीक है, वो होता है, एवरीबडी डज दिस थिंग, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट एक्सटेम्परी फर्स्ट मेरा डेक्लेमेशन था, नहीं आई पार्टिसिपेटेड सबसे पहले ही, आई वाज इन एक्सटेम्परी, ठीक है। एक्सटेम्परी में तो वी डोंट इवन टॉक, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत गलत बात होगी मेरे साथ, मतलब आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम लाइक कि पहले मुझे एक्सटेम्परी में डाल दिया, बट फिर मैंने कहा क्या विक्टिम प्ले करना, चलो देखते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने ही बंदे बैठे हैं सामने ऑडियंस में। तो फिर मैंने आई जस्ट वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द माइक, ठीक है, कॉन्फिडेंस इतना लेवल। और पता है क्या है द बेस्ट पार्ट, यू नो,
कि ऐसी इमेज मेरी टीचर्स के सामने भी थी, इवन इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल, कि जब somebody else did the same thing जो मैंने करी थी, मैंने अपना माइक उठा लिया था, ठीक है, लाइक इट्स ऑन स्टैंड है ना, पोडियम पे पड़ा होता है, तो मैंने वो माइक उठा के आई जस्ट वॉक, माइक रखे होते, सुन मेरे को याद है जब डाइस पे माइक रखे होते थे तो बीच में आ जाती थी सेंटर ऑफ द स्टेज वाली साइड में माइक लेके। हाँ, तो वो मेरा हो रहा था यार, मेरे को कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन आई एम वॉकिंग व्हाइल टॉकिंग, ठीक है, तो मैंने वही अपनाया, ठीक है, आई ट्राइड, ठीक है, मैंने उठा लिया माइक, ठीक है, वही मैं बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, आई गॉट, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था मेरा, तो इतना अच्छा भी नहीं था, तो इट वाज लाइक थर्ड प्राइज आई गॉट फर्स्ट टाइम में, ठीक है, आई वाज कैजुअल विद इट, ओके फाइन, बट सिमिलरली समवन स्टार्टेड कॉपिंग मी साथ में, ठीक है, नेक्स्ट वीक किसी ने कॉपी करा एंड प्रिंसिपल मैम वाज लाइक, ओ माय गॉड, आर यू अ हीरो ऑफ दिस हॉल एंड ऑल, मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स आ गई थी ना मुझे, और मेरा प्राइस आ गया, लाइक गॉड, मतलब वही हो गया ना, टीचर्स भी हमारी मतलब करते थे कि मतलब दे नो। हाँ, तो नहीं, who started copying you? क्या उसने कॉपी करना शुरू कर दिया और प्रिंसिपल, मतलब कॉपी इन द सेंस उसने भी माइक उठाया, ठीक है, अरे नहीं वही पूछ रही हूँ, किसने कॉपी करा, किसने, नाम हाउ वुड आई नो, मैं हर किसी को जानती थी वहां पे, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, there was a guy, I just remember this, but I don't exactly remember the face. अच्छा, तो प्रिंसी ने बोला कि are you hero, कि तुम लोगों में कर्टसी नहीं है, कि कंपटीशन हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा मैम ने, पता नहीं ऐसा ही कुछ, मतलब काफी उसकी उतार दी थी, मतलब ला ही दी थी कि ना, लाइक भाई मस्ती हो गई इसकी, किसने बोला, तेरे को याद है जब हम बस में होते थे और मैं तेरी तारीफ कर रही होती थी, यार किरण तू कैसे बोलती है यार, मेरे को बता यार, पर स्टिल है ना, जो जैसे तू आती थी ना स्टेज पे पता लग जाता था कोई आ रहा है, एक तेरे केस में होता था, एक कमल के केस में होता था, अर्शदीप दीदी आल्सो गुड है ना, एज इन है ना, तो उन ये जैसे एक तू, अर्श, मैं, कमल, हम चार, तो ऐसा होते थे, दो मेरा कभी प्राइस नहीं आया, स्टिल हम लोग होते थे, होता था, we four were there, हाँ हम लोग होते थे, और जब तुम लोग आते थे स्टेज पे तो ऐसा होता था कि हाँ चल अब आया कोई विनर मटेरियल आया है, that was the thing, जो कि एक्चुअली एक इम्प्रेशन छोड़ के गई है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ यार हमारे बैच के बाद कौन से गुड स्पीकर रहे स्कूल के पास यार, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी आई वांट टू नो, मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि नहीं यार होंगे थोड़े बहुत तो निकल जाएंगे, हाँ, हम लोग इतना भी कुछ ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते, नहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात नहीं है, पर यार हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना हमारे साथ, उनसे होता कुछ नहीं था यार, टू बी ऑनेस्ट, वो तो है यार, वो तो फॉर श्योर नहीं होता था, पर क्या पता उन्हें भी अक्ल आ गई हो बड़े होके। मेरा तो यार टीचर से अभी भी पूछ रहा हूँ, दे विल बी लाइक यू वर द वर्स्ट बैच एवर, अभी भी मुझे यही कहना है, जो मर्जी कह लो, हर एक क्लास को यही बोलते हैं। ओए हमारे ऐसा होता था, बलजीत मैम हमें बोल के जा रहे हैं योर साइंस सेक्शन के तो डिसिप्लिन होता है, और फिर हमें, मैं सुन रही हूँ कॉमर्स में भी जाके यही बोलते हैं, जैसे साइंस को तो डिसिप्लिन ही नहीं है, कॉमर्स को जाके देखो कॉमर्स में कैसे बच्चे बैठ जाते हैं, अगर मैं 2 मिनट के लिए बोलने जाती कॉमर्स में जाके, कॉमर्स वाले मेरे को बता रहे हैं यार तुम लोग इतना चुप होके क्यों बैठते हो, और हम सोच रहे हैं हम लोग चुप कब होते हैं, कह रहे हैं बलजीत मैम तो कहते हैं तुम लोग चुप हो कैसे बैठते हो, तो एवरी टीचर इज लाइक दिस, बट यार वी हैव गॉट सो मच, मतलब इतना हम प्रिविलेज थे कि इतनी अच्छी टीचर्स मिली है ना हमें। यार नहीं, मैं भी इस चीज के लिए आई लिटरली वांट टू थैंक एवरी टीचर कि हम लोग जैसे यार एक इमेज जो हमारी सेट होती है ना, सेट थी हर टीचर के सामने, अगर अब खप भी पाते थे तो दे वर लाइक कि चल हाँ लेट गो कर दिया, बुक नहीं लेके आई तो लेट गो कर दिया, हाँ एग्जैक्टली, वो चीज सही थी यार, सही थी, बड़ी सही थी, या और तेरा तो फिर ठीक था ना कि मतलब कि फर्स्ट बेंचेस एंड ऑल वो इंप्रेशन ठीक है, बट तेरा क्या था कि मतलब लास्ट बेंच पे बैठेगी, खप भी पूरी पाएगी ते पढ़ेगी भी यही, ये वाला हिसाब सीगा तेरा होते जाता। मैम पता क्या बोलते थे, मैम वाज लाइक आपने तो पढ़ ही लेना है,
पीछे ही जाके बैठ जाओ, पीछे वालों को बोलो आगे हो जाए। मेरी हमेशा मतलब आई रिमेम्बर एवरी टीचर, ठीक है, मेरी राइटिंग पे बहुत सारे लोग लाइक हाँ, और सुन रहे Wednesday पे आई लेटर, तेरी ठीक है, writing नहीं इतनी अच्छी थी जितनी मेरी थी, रुक जा, नो ऑफेंसेस यार। नहीं एज पर कि मतलब इफ आई टेल यू लाइक you were good at vocabulary, ठीक है, रुक रुक मतलब रुक, एक मिनट, सॉरी रुक। तेरे को याद है एक बार मैंने तेरा कोई मतलब तेरी कोई वो लिखी थी स्पीच सी, और तूने 10th में अपनी किसी टीचर को जाके दिखाई थी, इंग्लिश टीचर थे वो तेरे, और उन्होंने बोला था कि ये किसने लिखा है, राइटिंग इज सो गुड। हाँ, हैंड राइटिंग की बात कर रही है तू? हाँ गधी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग। अरे नहीं नहीं, तो टीचर ने बोला नहीं था मेरी हैंड राइटिंग के लिए? हाँ, हैंड राइटिंग तो तेरी अच्छी है, उस टर्म्स में नहीं भी बोल रही, हैंड राइटिंग तो पागल वो तेरी अच्छी है। हाँ वही तो। अच्छा राइटिंग, ओ गॉड अच्छा राइटिंग इन द सेंस गुड होल्ड ऑन वोकैब एंड इंग्लिश। नहीं, वोकैबुलरी वाज गुड ऑफ योर्स, ठीक है, वोकैबुलरी तेरी अच्छी थी भाई। इतना नहीं हम इतना इंग्लिश वाले, मतलब ठीक है, I was not used to writing so much vocabulary, क्योंकि मेरे को लगता था कि मतलब कि अगर ordinary person भी पढ़ रहा है ना भाई, उसको समझ आना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखती थी। ये चीज अब समझ आई है मेरे को, पर हाँ vocabulary मेरी तब अच्छी थी जब मनरीत सर लगे थे। हाँ, वो मनरीत सर के पढ़ने के लिए it was good, वो भी काफी मतलब देते होते थे प्रेज, बट मैंने बाकी टीचरों से सुना है, लाइक हिंदी टीचर हो गए, या हिंदी में कोई ऐसे लिख दे उसमें भी, ठीक है, पंजाबी में भी, और इवन हमारा मदर्स डे का हुआ था, यू रिमेम्बर, तो फिर हमारी प्रिंसिपल मैम ने उसमें बोला था मदर्स डे कार्ड में, अ लेटर फॉर यू, आपने लिखना है फॉर योर मदर। हाँ तो, तूने लिखा था और तूने कार्ड भी बहुत अच्छा बनाया था, आई रिमेम्बर। हाँ, तो फिर प्रिंसिपल मैम ने माइक में नहीं बोला था असेंबली में, this girl has made a card and the letter was like, I got so emotional, I was like मैम रोने ना लग जाना, but thank you। मतलब याद है असेंबली में बोला था, याद है, थोड़ा बहुत याद है भाई, अगले बंदे के रोने निकल जाए। हाँ सही है यार। मैं आई एम लाइक कि इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग, तुम ऐसे बोलो कि जो बंदा एक्चुअल में सुनना भी नहीं ना चाहता, तुम उसकी भी अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ये चीज होनी चाहिए अगर यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। लाइक यार ये चीज हम सिर्फ सोच करते हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि यार एक ना एक बंदा निकम्मा निकल ही आएगा जो नहीं सुनेगा, ऑफ कोर्स। मतलब चलो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके व्यूज बिल्कुल चेंज है, और क्या पता हमें सुन के वो कहे हाँ नहीं यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग, क्या पता ये भी हो सकता है। और यहाँ पे भी आई चैलेंज्ड माई सेल्फ कि मतलब कि जब व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, जब मेरा 3rd प्राइज आया था, तो आई वाज लाइक कि मेरी गलतियाँ क्या हो सकती हैं, मैंने अपने ये बनाने में आई ट्राइड टू मेक अ मिस्टेक, मैंने सोचा कि यार शायद दिस इज द थिंग कि मैंने आई कांटेक्ट नहीं बनाया, ठीक है, आई कांटेक्ट ऑडियंस, पर हमें सिखाया जाता है ना जब प्रैक्टिस। मेरी बात सुन, ऑडियंस को ये बता कि what are the things you actually need to be a good speaker in like अगर excel करना है in debates, declamations, extempore competitions या फिर कुछ भी, तो स्पीकर की क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, ये बता। मतलब I can just tell what works for me, क्या according to you? हाँ for sure, exactly। तो मेरा तो फर्स्ट तो यही था कि मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में ही गुड होना चाहिए, कि मतलब ये नहीं है कि मतलब इंट्रो आपने दे दी बहुत ही लो वॉइस में एंड देन यू आर स्टार्टिंग अप टू हाई, क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है पूरी स्पीच का, ठीक है। बिगिनिंग स्टार्टिंग बेस्ट होनी चाहिए, चाहे स्पीच में चाहे फंबल मार भी लो, डोंट केयर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में सब सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम भी सपोज करें, ठीक है, मेरे बाद कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, आई एम जस्ट एंडिंग माई स्पीच, आई विल से थैंक यू, ठीक है, द अदर पर्सन कम्स, ठीक है, उससे पहले काफी हसल हो जाती है, ठीक है, बच्चों में काफी बातें हो जाती हैं। अगर फर्स्ट गो में आपकी गुड मॉर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई ना, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन द रेस्ट ऑफ द स्पीच, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है। अगर फर्स्ट गुड मॉर्निंग में आपने ग्रैब नहीं अटेंशन करी, तो आप पूरी स्पीच में कल्ले बोलते हो, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज लाइक कि मतलब वॉइस मॉड्यूलेशंस यूज करनी चाहिए, ठीक है,
हाँ वो right. ऐसे मतलब कि हाई पिच वॉइस जहाँ पे आपको लगे कि अटेंशन लूज हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद एंड देन यू कैन इवन आस्क योर क्वेश्चंस कि मतलब कि आई वुड लाइक टू आस्क द ऑडियंस, ठीक है। बीच में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो टू एंगेज द ऑडियंस एज वेल, ठीक है। पूछना हमने आंसर हमने खुद ही देना होता है। वो इतने हाई वी आर नॉट द टीचर की कोई हमें आंसर भी करेगा, हमें पता है इतनी रिस्पेक्ट नहीं है हमारी, ठीक है। एग्जैक्टली, कोई उठ के नहीं बोलेगा आई वांट टू आंसर। हाँ, तो हमें पता है आंसर अपनी बेइज्जती भी बचानी है पर एंगेज भी करना है। तो हमने बोलना है कि मतलब कि आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन। हेलो। हाँ 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 सुन रही हूँ। तो उसके बाद पॉज फॉर अ सेकंड, उसके बाद आंसर आपको खुद करना और एक और चीज है, एक और पड़ेगा। चीज है, एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो हम एक्शन से करते होते थे हाथों के साथ। हाँ एग्जैक्टली, इतना डम्ब मत बन जाओ सामने कि हाँ जी भी हाथ जोड़ के खड़े गए कि भाई आगे परेशान चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद बोलना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा और थोड़ा हाथ हिला सकते हो। कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन यू आर ओपन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक और है। तेरा ये भी सीन था, तेरा ये भी सीन था कि जैसे तुमने बोला कि वो जो डाइस पे माइक होता था मैं हाथ में पकड़ लेती थी, तू यू वर ऑलवेज ओपन टू शो योर लाइक लोअर पोर्शन, अपने लेग मूवमेंट्स भी तू शो करती थी सब कुछ। अगर डाइस के पीछे खड़ी होती ना, जैसे मैं स्टार्ट में खड़ी होती थी, तब भाई मेरी लेग एक्चुअली शिवरिंग। और मैं सोचती थी कि डाइस पे ही जाके बोलूंगी, ये मेरे साथ स्टार्ट में एक दो बार हुआ था, और फिर मैं सोचती थी कि डाइस पे ही जाके बोलूंगी क्योंकि मेरा लोअर पोर्शन नहीं दिखेगा कि हाँ मैं एक्चुअल में कांप रही हूँ। तो ये चीज होती है, तो कौन होती है। हाँ बट या वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब कि मेरा यही सीन था कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद बेइज्जती फील हो जाती है, ठीक है। किसी और को भी डांट पड़ती है तो हमें भी फील हो जाती है इतने तो मेरे को उस टाइम पे फील हो गया था। मैं कि यार ठीक है, इट्स ओके, मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन समटाइम्स। तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम पे जब हमारा डेक्लामेशन हुआ था या डिबेट हुआ था, जो भी हुआ था, नेक्स्ट टाइम मैंने पोडियम पे देने की कोशिश की, ठीक है। तो तब मेरा और अच्छा हो गया, मेरा फिर सेकंड आया था। मैं थी भाई ये थोड़ी बहुत तो हो गई है आगे, ठीक है, ग्रेड तो हो गई, मतलब चलेगा काम, ये भी ठीक है हमारे लिए, ग्रोथ हो गई। हाँ। तो तब भी मैंने पोडियम पे ट्राई किया था, बट ये था कि अगर तुमने डिबेट कर रहे हो ना भाई, इतनी ऊंची वॉइस होनी चाहिए कि मतलब एवरीबडी अर्जेस टू लिसन टू यू। तो आई यूज्ड टू, मतलब यू कैन इवन स्लैम योर हैंड ऑन यू, थोड़ा जेंटल करके, ज्यादा वहाँ पे बसत नहीं क्रिएट कर। वही एक दीदी होती थी, तेरे को याद है वो भाई, वो कैसे मारती होती थी डाइस पे डूड। मतलब डिबेट है, थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना, नहीं वो अजीब ही लगता था यार। हाँ वही कह रही हूँ ना, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, कि मतलब थोड़ा स्लैम भी कर, थोड़ा आराम से करना चाहिए। तो हाँ, वही right, चीज अपना देखो। बाकी दिस इज जस्ट व्हाट वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम। Maybe this could work for अभी कल परसों सोच रही थी कि मतलब व्हाट इफ आई एम स्कैर्ड ऑफ स्टेजेस राइट नाउ। अगर मेरे को कोई बोल दे कि वहां पे जाके बोल के आओ, हो जाएगा मेरे से अब। मतलब पहले थोड़ा लगता है, डर तो लगता है कि 5 years without anything। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ। अभी तेरे को लग रहा है ना तो कि तू थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगी स्टेज पे जाके, क्योंकि तेरे को लगेगा कि हाँ मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं टाइप्स, है ना। क्योंकि तब हम इतना कंफर्टेबल भी हो गए थे बिकॉज वी नो कि ऑडियंस कौन होगा। अब भी हो जाएंगे, इट्स जस्ट नहीं ऑडियंस की। हाँ पहले वील बी कॉन्शियस फॉर सम टाइम्स, ठीक है। हम लोग ओपन हो जाते हैं, एस्केलेट करना है। हाँ तो राइट। और ये चीज यार हमें है, टू बी ऑनेस्ट यार, है, खुल चुके हैं। कर लेंगे कुछ ना कुछ बोल के कर ही लेंगे। हाँ मतलब चाहे हम प्राइज ना भी मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेकार से बेकार चीज बोल दे, हम बोल के कॉन्फिडेंस से आएंगे। हाँ और यही तो मेरे में होता था। जैसे तूने बोला ना कि मैं इम्प्रूव करती थी कि मैं खुद को कैसे करूं, भाई मैं अभी यार ये चीज मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हाँ मैं जैसे फर्स्ट कंपटीशन होगा, सेकंड मैं स्कूल में प्रैक्टिस करती थी, घर में 1 बार 2 बार मसा कर लिया बस। उसके बाद हाँ चल ठीक है कल देखेंगे, जो होगा देखी जाएगा। आई वाज लाइक मैं कभी लोड नहीं लिया। सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड ना भाई। और एक ह्यूमर, अगर आप कुछ भी बहुत ही सैड सिचुएशन में हो ना, या तो ह्यूमर का यूज करो, एक्सेप्ट किसी के फ्यूनरल पे ना करो आप, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा कोई दुख में तो हंसना चाहिए,
पर हाँ, ह्यूमर आपका दिल को तसल्ली दे सकता है ह्यूमर आपका, ठीक है। इतना हाँ, ह्यूमर होना चाहिए कि अपने आप को हंसा सको और अपने आप पे हाँ, हंस। एग्जैक्टली। यार वही तो मैं बोल रही हूँ कि ना, ठीक है मैंने लोड नहीं लिया, चल ठीक है देख लिया, एक बार हो गया प्रैक्टिस, 2 बार कर ली, बस बहुत है यार। स्कूल में 4-4 कितने पीरियड्स तो मैम के साथ जाते होते थे हम लोग, ऑलमोस्ट सारा सारा दिन ही लग जाता था कभी कभी। या तो फिर वी वर लाइक हाँ ठीक है बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब देख ही जाएगा, फाइनल शॉट में देख लेंगे क्या ही होगा। बस एक कंपटीशन था जिसमें मेरे को एक्चुअल में फील हुआ, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वाज गुड इनफ टू गेट अ प्राइज, उसमें मेरे को फील हुआ था बस, और किसी में मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है यार, अपना अपना होता है सिस्टम। लाइक आई यूज टू बी प्रिपेयर्ड वेरी मच, ठीक है। मतलब मैं प्रिपरेशन ऐसे नहीं, कि तू मतलब बैठी होती थी वहां पे बस में भी अपने पेपर पकड़ के, ठीक है। यार मुझे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एंड आई एम लाइक किरण सुन तो सही यार। Yeah, I used to Don't- cry. I was a person who cries on single mark. ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। Who लेकिन cries? रोएंगे ये अच्छा, सिंगल mark की वजह से ओ नहीं होती। भाई साहब, वो तो स्टोरी शुरू ही मत कर तुम। हाँ, इतना रोती थी मैं, मेरे घर वाले कहते थे यार तू पागल है। और मैं तू मेरे को बोल दिया यार आधा नंबर कम आया है, एंड आई एम लाइक यार मैं इसको क्या ही बोल रहा हूँ अब। चलो जब ठीक है। कितनी अच्छी स्कोरर थी। वही है जब ना कि ठीक है, मैंने कुछ चीजें तेरे से सीखी हैं, कुछ चीजें तूने मेरे से सीखी हैं, तभी तो हमारी फ्रेंडशिप बनी हुई है। अदरवाइज इफ वी कांट ग्रो टुगेदर, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेंडशिप? एग्जैक्टली वही तो मैं सोच, यार ये चीज तो मैं तेरे को बोल ही रही हूँ ना कि हम लोगों में, और सबसे बड़ी बात हम लोगों में एज गैप कोई बैरियर नहीं बना। या जैसे हम लोगों की मीटिंग सोच, सिर्फ बस में सुबह मिलना, उसके बाद में मिलना, क्या ही हमारी मीटिंग होती थी, है ना। मतलब 15-20 मिनट, 20-25 मिनट होती थी, फिर भी हम लोग वी आर लाइक सो गुड फ्रेंड्स टिल नाउ, टच वुड। लाइक आई लाइक यू एज अ पर्सन अ लॉट, मतलब होलसम काइंड ऑफ पर्सनालिटी है तेरी, व्हिच इज गुड। और एक और चीज हमें डेवलप करना चाहिए, हाई पर्सनालिटी गेट मींस वॉकिंग पैटर्न, ठीक है। कि मतलब हमारा पैटर्न जो है वॉकिंग पैटर्न थोड़ा कॉन्फिडेंट वाला होना चाहिए, कि मतलब ज्यादा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट दिखो और ये इतना लो भी नहीं कि कॉन्फिडेंस ना दिखे। मतलब इससे पता कौन याद आ रहा है? कौन? कमल। जैसे वो वॉक करती होती थी, मान ले माइक माइक तक उसकी वॉक होती थी बिल्कुल लो, हाँ, फिर जब बट जो उसने, बोलती थी ना भाई, भाई साहब, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल होता था वो। तो वही मैं हाँ। बोल रही हूँ, अगर वो वॉक भी सही तरह कर लेती ना, बस सही है, फिर उसका काम ही खत्म था। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई जस्ट न्यू यू, ठीक है। सो उसके अलावा मेरे को ईशा पता थी और फ्रेंड्स एंड ऑल, आई न्यू मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, जो तेरे क्लास के थे। बट कमल का मुझे पता था शी इज अ वेरी गुड स्पीकर। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम उसकी वॉक देखी थी ना टू बच द माइक, आई वाज लाइक ये कुछ नहीं करके आएगी, कि हाँ मतलब हाँ, ये मैं कह रही हूँ, इससे मेरे को ये याद आ रहा है। किया हुआ है मैंने अपने माइंड में। बट व्हेन शी स्टार्टेड आई वाज लाइक भाई ये कंपटीशन है। किरण लर्न कर लो दोबारा। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब द वे पीपल जजेस यू इज लाइक तुम्हारा वॉकिंग पैटर्न, तुम्हारा स्टैंडिंग स्टाइल, तुम लोग लीन कैसे खड़े हो, झुक के खड़े हो, झुक, देखो पता है झुक के, जैसे द वे आई स्टैंड, इट इज अ साइन ऑफ हैविंग लो कॉन्फिडेंस। या तो दैट्स अ पॉइंट। पर हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो चुकी है, पता है, 1 hour and 28 minutes। कट कर देंगे। नहीं कट नहीं करना, कुछ भी डालना पूरा ही है। बाकी अभी आई हैव डिसाइडेड कि मैं ना वो डालूंगी, क्लिप्स डालना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे हमने लास्ट में इतनी अच्छी बात करी है हाउ टू बी अ गुड स्पीकर वाली, इसकी मैं क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी। अभी आई हैव डिसाइडेड दिस टू डू दिस थिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई इतना लंबा नहीं वॉच कर पाएगा मे बी, तो फिर मैं लास्ट के क्लिप्स डालना स्टार्ट कर दूंगी बीच बीच में, जो भी मेरे को अच्छी लगेंगी। एक पूरी डाल दी, उसके बाद क्लिप्स डाल दिए। या और वैसे भी लाइक यू कैन शेयर इट ऑन इंस्टा एज वेल, है ना, कि मतलब कि थोड़े बहुत क्लिप्स ताकि लोगों को लगे। और वैसे भी यार मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक, आई डोंट रिमेम्बर उसका नेम क्या था, क्योंकि आई जस्ट लॉट दैट बुक, बट मैंने कुछ चीजें ना उसमें से लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें से एक चीज बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, कि मतलब
कैन नॉट कम्प्लीटली कंट्रोल योर स्केड्यूल, ठीक है, बट यू कैन कंट्रोल योर अटेंशन। कि मतलब आपने स्केड्यूल बना लिया कोई, ठीक है, एंड देन यू आर थिंकिंग कि हाँ भी आई वर्क ऑन इट फ्रॉम टुमारो। तो अगर यू स्टार्ट वर्क ऑन इट, ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इसके बाद मैंने ये काम करना है, ठीक है, जो काम कर रहे हो उसको अटेंशन से करना चाहिए। मतलब पूरी फुल एंड होल अटेंशन आप उस काम को दे दो, ताकि जब आप नेक्स्ट पे जाओ ना, आपको ये ना हो कि मैंने वो भी काम अच्छे से नहीं किया। तो मतलब स्केड्यूल के पीछे भागो, जो भी काम कर रहे हो उसको अटेंटिवली करो। तो ये काफी अच्छा है। मतलब कि अगर आपका स्केड्यूल पीछे रहता भी है ना, इट्स फाइन, बट जो काम कर रहे हो एटलीस्ट वो तो ढंग से कर लो। आई एग्री। जैसे तूने कभी सुना होगा कि जो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो यार 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारे नंबर आते हैं। मतलब बीच में से एक्चुअली कितना पढ़ा आपने वो बताओ हमें। हाँ, ये 8-8-9 घंटे पढ़े, हम तो भाई 2-3 घंटे पढ़ते थे। मैं तो नहीं पढ़ी इतना, सच्ची बता रही हूँ। तो मतलब कि जितना आपसे होता है उतना करो ना, व्हाई टू पुट बर्डन, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और हम लोग इतना पढ़े भी नहीं है कि हम लोग 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठ जाएं। भाई 2 घंटे बैठे थे और प्रॉपर कंसंट्रेशन से बैठते थे। एग्जैक्टली। मतलब दैट्स वेरी गुड। थोड़ा लगा भी हाँ भाई अब समझ नहीं आ रहा, तो यू नीड टू टेक अ नैप, ठीक है, इट्स फाइन। एग्जैक्टली। अगर तुम लोग लोड लोगे ना कि अब पढ़ना ही है, वो कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा तुम्हारा माइंड। इट्स बेटर टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, लाइक मतलब हाँ, उठ जाया करो। इतनी बड़ी सिटिंग ना ही रखो तुम, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रखनी चाहिए। And yeah, right, I agree. ठीक है, one more point कि each encounter, whether with friends, family or strangers, is completely unique and will never be repeated. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। मतलब कि दोबारा बोलियो कि each encounter, whether with friends, family or strangers, is unique and will never be repeated. और इस चीज की this point was so good. I was like कि अगर किसी स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हो ना, यू नीड टू बी नाइस टू देम, ठीक है, क्योंकि वो भी काफी प्रॉब्लम से निकले हो, क्योंकि हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है यार। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मतलब एटलीस्ट मैं किसी के रीजन ना बनाऊं फॉर देयर सैडनेस और व्हाटएवर, ठीक है, या मेरी। और वैसे भी द पॉइंट यार, हम स्ट्रेंजर्स को हर्ट नहीं करते, वी हर्ट द पीपल वी लव द मोस्ट, फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रेंजर्स, ठीक है। कई बार ये चीज भी हम बहुत करते हैं। तो मतलब कि कोई भी एनकाउंटर जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि यू नीड कि वो आपके बारे में बोले कि हाँ भाई ये जो था ना, उसने कोई इम्पैक्ट किया तुम्हारी लाइफ में। हाँ, ये बंदा वधिया सीगा टाइप्स। हाँ, नाले वैसे भी ये सोच के जाओ मतलब जेड़ा बंदा तुहानू हुण मिल रहा है वो नहीं मिलन वाला दोबारा, ठीक है। पर मेरी बात सुन एक मिनट, मैंने तो ये बात पढ़ी है या सुनी थी, किसी टेड टॉक में सुनी थी, आई डोंट नो, लाइक every person you now know was once a stranger to you. Dude, this is so impactful. जिसको भी आज तू जानती है, तू भी मेरे लिए एक पॉइंट पे स्ट्रेंजर ही थी। किसी को भी आज जानती है, वो मेरे लिए एक पॉइंट पे स्ट्रेंजर ही था। और ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल, कि मतलब अगर कल को हम इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है, लाइक द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है, अगर आगे जाके हमारे बीच में कुछ भी होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हम अलग भी होते हैं, देन ऑल्सो वी विल बी स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो स्ट्रेंजर्स टू हमारा कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनता है, एंड देन द स्ट्रेंजर्स, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स हाउ लाइफ इज। मतलब ना सैड कि हाँ भाई ये आया मेरी लाइफ में या आई मेरी लाइफ में, ठीक है, ना रोते बैठो, ठीक है, क्योंकि यार एक गया तो दूसरा आएगा। For sure, exactly. And यार, you have to, like, you should be mature enough to choose that your life is meant to be exactly in your way, right? तो तुम लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा रास्ता, वो कोई नहीं बनाएगा, right? मतलब यार जब तक तुम अपने आप के लिए खड़े नहीं होते ना यार, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। कोई नहीं खड़ा होगा, for sure. कोई आके तेरे लिए स्टैंड नहीं लेने वाला है यार। इतना बड़ा लिख के आई कैन इवन पुट इट ऑन माई वॉल, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत करी हैं।
इवन स्कूल में भी समटाइम्स आई हैव डन दिस, बट उसके स्कूल टाइम के बाद आई हैव डन अ लॉट थिंग्स लाइक दिस, where you feel like you are like you were the wrong person. मैंने ऐसा क्यों करा, right? या और वैसे भी लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, Learn to फॉरगिव योरसेल्फ, forgive yourself for sure. यार क्योंकि गलतियां पता है कौन हम सी क्या करते करते हैं हैं, यार, ये तो एज है गलतियां करने की. क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, ठीक है, चाहे आपकी गलती है, ठीक है, मान लिया आपकी गलती है, बट फॉरगिव योरसेल्फ. क्यों? क्योंकि अगर वही लेके बैठे रहोगे ना तो लाइफ निकल जाएगी एंड यू विल बी रिग्रेटिंग, ठीक है. फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड. लाइफ चलती रहेगी भाई, लाइफ गोज ऑन. लाइफ गोज ऑन. भाई तो कि तुम लोग यार कितनी देर खुद को हर्ट कर लोगे, या हर्ट करके कर भी क्या लोगे, तुम खुद ही हर्ट हो रहे हो हंसता ही है यार. मैं लिटरली अभी भी हम सोच के हंसी रहे हैं कि मतलब कैसे आई यूज्ड टू क्राई फॉर सिंगल मार्क्स. हाँ exactly. मार्क्स नहीं आया, लॉस. मैं कह रही हूँ 2 साल या थोड़ी देर बाद हमें ये सब चीजें will look like जुआक्का या हरकतां, like kids. तो it's like enjoy करो, पर एक हद होती है कि मतलब एक वो भी होता है ना कि there's a line which you don't have to cross, like जहाँ पे तुम लोगों को सही लगता है करो, खप पढ़िया यार पाओ, enjoy करना. Life is meant to enjoy, life is meant to make memories, so you know ताकि तुम आगे जाके चेरिश भी कर पाओ. पर इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग कुछ भी ना करो, तुम लोग यार बिल्कुल ही विदाउट फोकस जियो, उसका भी कोई मतलब नहीं है. या एग्जैक्टली. चल फॉर नाउ लेट्स रैप इट अप. या आई वाज आल्सो थिंकिंग दिस. एनीवे चल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. one thing sorry to interrupt, but इट्स लाइक कि वैसे तो हमने रैप अप करने के लिए फॉर द एंड पार्ट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, मतलब सारा रैप अप मैंने अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में ले लो, ठीक है. किसी और कंट्रोल होगा तो दैट विल स्क्रू अप योर लाइफ. And these are the special with these Kiran talks. Let's wrap it up. Thank you for doing this. This was a really great conversation. I just adore you for this. Thank you so much. Thank you. Bye bye everyone. Bye.